Recording in progress. विजय जी। जी सर, स्टार्ट करते हैं विजय जी। हैं अभी यार 1-2 मिनट रुके और चलो 1 मिनट रुक जाते हैं, 11:05 तक करते हैं जैसा आप कहें। शुरू करें सर? जी। Very good morning. I feel privileged to welcome all of you on behalf of Hisar branch of NIRC of ICI in today's webinar. My warm welcome to respected senior members, our honorable chief guest Shri Guru Pratap Singh ji, Deputy Director of State MSME Hisar, our guest of honor Shri Upender Kumar ji, our special invitee Shri Ajay Batra ji and Shri Ashwini Shingal ji in absentia, our guest speaker CA Pankaj Gupta ji and my professional colleagues. Now I invite CA Bharat Jain ji, Chairman Hisar branch, to deliver his welcome address. Please sir. Thank you Vijay ji. Our respected members of our branch, members from business houses and senior members of our branch, galaxy of past chairmen, our chief guest of today's program Shri Guru Pratap Singh ji, Deputy Director MSME, our guest of honor of the day Shri Upender Kumar ji, AGM PNB Hisar, our guest speaker CA Pankaj Gupta ji, our special invitee of the day CA Shri Ajay Batra ji and Shri Ashwini Kumar Singhal ji. A very good morning to all of you. I, on behalf of Hisar branch of NIRC, welcome you all in today's webinar on the topic of MSME. Today, we are celebrating International MSME Day, and Institute of Chartered Accountant of India, with all of the branches all over India, is celebrating this day, and we are having this program MSME. In today's program, not only CAs but the members from industries have joined today. I welcome CA Pankaj Gupta ji, our today's speaker, to enlighten the members. Sir, welcome, sir. I also welcome Shri Guru Pratap Singh ji, our chief guest of the day. Sir, welcome. I also welcome Shri Upender Kumar ji, our guest of honor from PNB. Thank you. Over to you, Shesh ji. Thank you, Bharat ji. Now I request our special invitee, Shri Ajay Batra ji, General Secretary, Hisar Udyog Sangh, to express his views. Please, sir. Ajay Batra ji. Ajay Batra ji नहीं है, उपेंद्र जी से कर सकते हैं. Okay. Now I request our guest of honor, Shri Upender Kumar ji, AGM, MCC branch, PNB Hisar, to express his views. Please, sir. उपेंद्र जी. उपेंद्र जी, माइक. आवाज आ रही है? बिल्कुल सर. सबसे पहले मैं आज के इस वेबिनार से जुड़े हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों को नमस्कार एवं सुप्रभात करता हूं. मैं पार्टिकुलरली अपने भरत जी टीम को धन्यवाद देता हूं,
जिन्होंने आज के इस पेंडेमिक के विषम परिस्थितियों में भी इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया और मुझे इसमें बोलने का मौका दिया। आज जब हम बात करते हैं सीए का, जो रोल ऑफ सीए इन एमएसएमई, तो शायद इनकी इम्पोर्टेंस काफी बढ़ जाती है। जब ये सीए का एक मान्य होता है कि आज के जो अपनी इकोनॉमिक गतिविधि है उसको कैसे बढ़ाएं, शायद इनमें इनका एक अहम योगदान होता है। और किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट स्टार्ट से लेकर कंप्लीशन तक इनका जो योगदान होता है शायद उसको भूला नहीं जा सकता है। जब आज बैंकिंग पैरेलल्स में जब हम लोग बात करते हैं, तो जब हमारे कोई भी प्रोजेक्ट हमारे पास जब आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि शायद जो प्रोजेक्ट को कोई स्टार्ट जब दिमाग में आती है कि हमको इस प्रकार का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले हम किसी न किसी सीए का सहारा लेते हैं, जो उसको डिटेल में सारी प्रोजेक्ट को कितने समय लेंगे, कितने खर्च होंगे, कितने इनकम होंगे, उन सारी चीजों को बखूबी एक पेपर में उसको जट डाउन करते हैं और उन चीजों को समझाते हैं। फिर उसके बाद वो बैंक के पास आता है और बैंक में हम उनके दिए हुए जो खाका है उसको एक बार स्टडी करते हैं और स्टडी के आधार पर हम लोग ये जरूर निश्चित कर लेते हैं कि शायद ये प्रोजेक्ट हमारा जरूर सक्सेसफुल होगा। बट पार्टिकुलरली अगर रिसेंट टाइम में हम लोग बात करें तो कुछ ऐसी चीजें नजर आ रही है, हमारे कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट, हमारे कुछ जो छोटे मोटे व्यापारी भाई हैं, वो कुछ पैसों को बचाने के लालच में क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं जो अनक्वालिफाइड हमारे जो ये होते हैं सीए नहीं बल्कि बाजार में तो कहते हैं कि हम अकाउंटेंट्स हैं, बट उनका सहारा लेते हैं और वो काफी कम पैसे में प्रोजेक्ट को बना लेते हैं, लेकिन उनके सक्सेसफुल होने की, उनके कंप्लीशन की काफी कम चांसेस होती है और उसमें जो भी उनको फ्रूटफुल यानी फायदे और नुकसान होने वाले हैं उन सारी चीजों से वो वंचित रह जाते हैं। क्योंकि ये सबको पता है कि हमारे सीए जो होते हैं वो क्वालिफाई उसी की पढ़ाई करते हैं, क्वालिफाइड होते हैं और किसी भी प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल के लिए क्या क्या हमको जरूरी है उन चीजों को जब बताते हैं तो उसमें काफी हमको सफलता मिलती है। हमने यहाँ देखा कि कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं जो कि हमारे यहाँ भी चूंकि प्रोफेशनल लोग बैठे रहते हैं, जब उस प्रोजेक्ट को स्टडी करते हैं, जब उनके प्रोजेक्शन को देखते हैं तो पता चलता है कि ये प्रोजेक्ट जो है वायबल नहीं हो पाएगा। कारण उसको किसी न किसी प्रोफेशनली क्वालिफाइड सीए ने तैयार नहीं किया, उसको कहीं ना कहीं किसी अकाउंटेंट्स ने तैयार कर लिया। लेकिन अकाउंटेंट्स हो जाने से जो आप पढ़ाई करते हैं, जो एक सीए की पढ़ाई होती है, वो चीजें उसमें नहीं आ पाती है और उसी कमी के चलते जो है उस प्रोजेक्ट की जो कंप्लीशन की जो पोजीशन होती है वो कम हो जाती है। इसमें घाटे नाफे की अगर बात करें तो पर्टिकुलरली यदि बैंकिंग पैरेलल्स में हम लोग देखें तो हम लोग देखते हैं कि यदि किसी भी प्रोजेक्ट को सही दिशा में बनाया जाए और उसके प्रोजेक्ट को सही प्रोजेक्शन के हिसाब से बनाया जाए, तो जब हम अगले साल जो एक्सिस्टिंग यूनिट है या जो न्यू यूनिट है 1 साल या 2 साल के बाद जब हम उनका मुआयना करते हैं तो हम पाते हैं कि प्रोजेक्शन के हिसाब से जब उनकी अचीवमेंट होती है तो हर बैंक में उनकी रेटिंग अच्छी होती है और रेटिंग के आधार पर उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कॉम्पिटिटिव यानी कम हो जाता है। लेकिन यदि उसको स्टार्ट में ही यदि प्रोजेक्शन को सही नहीं बनाया गया तो कहीं ना कहीं उसको अचीव नहीं किया जा सकता है और नॉन अचीवमेंट के कारण उनका रेटिंग जो है खराब हो जाती है और ऐसी परिस्थिति में जो है उनको एक कॉम्पिटिटिव जो रेट मिलनी चाहिए थी उन चीजों से भी वो वंचित रह जाते हैं। सिमिलरली हमने देखा कि कई जो ऐसे एमएसएमई में हमारे जो व्यवसायी या जो इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं उसमें देखा गया है कि उनको न, जैसे हमारे कई सारे स्कीम है जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से इंटरेस्ट सब्सिडी है, इंटरेस्ट सबवेंशन है, लेकिन शायद जानकारी के अभाव में उसका ये फायदा नहीं उठा पाते हैं। लेकिन यदि यही किसी क्वालिफाइड सीए के द्वारा यदि प्रोजेक्ट तैयार किया गया हो तो इसमें ऐसा पाया गया है कि वो समय समय पर हमारे सारे जो चीजें हमारी आवश्यकता है, जो हमको टाइम पर हमको ऑनलाइन जो अप्लाई करना है उन चीजों को अप्लाई करा देते हैं और उसमें ऐसा पाया गया है कि ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट या व्यवसायी लोग इन सारी सुविधाओं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा समय पर दिया जाता है उन चीजों को उसका लाभ उठा पाते हैं। और ओवरऑल यदि एक्सपेंडिचर और इनकम की बात करें तो हमारे सीए जो इसमें जो सहयोग करते हैं उनसे कहीं ना कहीं यदि कम में हम प्रोजेक्ट किसी अनक्वालिफाइड पर्सन से बनवाते हैं तो ऐसा पाया गया कि हमारी काफी लॉस होती है। तो मेरा एक बिल्कुल सहयोग सजेशन भी रहता है जो हमारे पास आते हैं कि आप कहीं ना कहीं किसी भी क्वालिफाइड सीए के पास जाएं
और उस प्रोजेक्ट को बखूबी उनके अच्छाइयों और बुराइयों के बाद समझें, उनके प्रोजेक्ट को सही सलामत बनवाएं और समय समय पर उनका सहयोग लेते रहें, ताकि आपके प्रोजेक्ट की कंप्लीशन की संभावनाएं और सक्सेसफुल होने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती है। यदि पीएनबी में बात करूं तो चूंकि हमारे बहुत सारे सीए बंधु भाई हमारे से जुड़े हुए हैं, लेकिन चूंकि समय का कॉन्स्टेंट है, मैं सारी स्कीमों को नहीं बता सकता हूं, बट संक्षेप में इतना जरूर मैं बताना चाहूंगा कि अगर कोई भी व्यवसाय, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की अगर लीगल एंटिटी के तहत अपना कोई कार्यक्रम करना चाहता है, तो पीएनबी के पास ऐसी स्कीमें हैं जो उनकी जरूरत के अनुसार उसको समायोजित किया जा सकता है और उनको हर प्रकार से लोन की सुविधा दी जा सकती है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट भी रहेगा, चूंकि हमारे जो ट्रांसपेरेंस कार्य करने की शैली है, आप बिल्कुल हमसे जुड़े और किसी प्रकार की अगर आवश्यकता हो तो हम उसमें सहयोग करने के लिए आपसे हमेशा तैयार रहेंगे। मैं एक दो तीन मिनट को समय को लेते हुए आपको बता दूं, जैसे आज की परिस्थिति में मैं देखता हूं कि मेडिकल, पर्टिकुलरली यदि ऑक्सीजन या मेडिकल हॉस्पिटल, इसमें काफी हमारी आवश्यकता नीड महसूस हुई है। और उसमें हमें बता दूं कि एक स्कीम हमारे तहत है जो डॉक्टर लोगों के लिए स्पेशली है, जिसका नाम पीएनबी संजीवनी है। इसमें एक चीज की सुविधा सबसे बड़ी अलग जो होती है कि यदि किसी डॉक्टर ने, यदि किसी हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन ने यदि अपनी लैंड को अपने से ओन सोर्स से एक्वायर किया है और जब हम उनको इस तहत स्कीम के तहत लोन देते हैं, तो हमारे लिए किसी भी प्रकार की कोलेटरल की आवश्यकता नहीं है। यानी कि जो प्राइमरी एक्ट जो हमारी लैंड है, जिस पर की को नर्सिंग होम बनी है, जिस पर इक्विपमेंट लगती है, हम लोग उसी को उसको कोलेटरल के तहत उसको स्वीकार करते हैं और हमारी रेट जो होती है वो काफी कॉम्पिटिटिव रेट होती है। इसी के तहत यदि हमारी कोई भी व्यवसाय यदि 1 करोड़ से नीचे का लिमिट लेते हैं, तो एक स्पेशल स्कीम हमारे यहाँ है जिसको हम लोग पीएनबी व्यापारी स्कीम के तहत कहते हैं। जैसे छोटे छोटे हमारे जो भी व्यापारी हैं, वो नॉर्मली स्टॉक देने में काफी उनको दिक्कत महसूस होती है और वो चाहते हैं कि उनको स्कीम स्टॉक रिपोर्ट ना देना पड़े। तो इसके तहत हम आपको बता दें कि हमारे इसमें क्वार्टरली स्टॉक देने की प्रावधान है, यानी साल में केवल 4 बार स्टॉक दिया जाता है। तो शायद वो स्टॉक देने की इन सारी झंझटों से मुक्त हो जाते हैं और उनको कहीं ना कहीं कोई भी कठिनाई नहीं आती है। मैं ये चाहूंगा कि हमारे जो भी यहाँ पर नया व्यापारी वर्ग, नया इंडस्ट्रिस्ट, नए छोटे मोटे व्यापारी लोग आते हैं, वो कहीं ना कहीं सीए का सहयोग लें, उनके मार्गदर्शन में काम करें, क्योंकि मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इस प्रकार से जब कोई क्वालिफाइड पर्सन के अधीन उनके मार्गनिर्देशन में जब हम काम करते हैं, तो हमारे सक्सेसफुल होने की संभावना काफी अधिक होगी और ज्यादा से सक्सेसफुल होने की स्थिति में ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम अपने पास जोड़ पाएंगे और जिस उद्देश्य से हमारी सीए की जो लोगों की पढ़ाई हुई, जो गवर्नमेंट का उद्देश्य था, उस उद्देश्य की पूर्णति भी होगी। इसके साथ ही हम ये भी जानते हैं कि हर प्रकार के हमारे खर्च इनकम को हमारे पास अगर उसका ब्यौरा रखना मुश्किल होता है, बट चूंकि ये टेक्निकली क्वालिफाइड लोग आपको सहयोग करेंगे और आपके हर प्रकार की इन चिंताओं से आप व्यापार में केवल अपने ध्यान को आकर्षित कर पाएंगे और इन चीजों से आप पूर्णतः स्वतंत्र होकर जब व्यापार करेंगे तो आपके व्यापार में ज्यादा से ज्यादा तरक्की होगी। इसलिए मेरे सभी इंडस्ट्रिस्ट और जुड़े हुए लोगों से ये निवेदन है कि आप सीए का सहयोग लें। और चूंकि आज जैसे भरत जी ने बताया कि आज इंटरनेशनल डे है, तो मैं चाहूंगा कि हमारे सीए जो आईसीए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया हमेशा हरा भरा रहे और व्यापार को, बैंक को, देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में जैसे पीछे की तरफ अपना सहयोग दिया है, हमेशा आगे की तरफ सहयोग देते रहेंगे और हम इनका मार्गदर्शन, इनके जो दिशा निर्देश है, इनके जो लेखा प्रणाली है, उसको पूर्णतया अपने आप में समायोजित करेंगे और उसके अनुरूप काम करेंगे ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की अनियमितता होने से इससे बचा जा सके। धन्यवाद जी। थैंक यू उपेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाउ आई रिक्वेस्ट अवर स्पेशल इनवाइटी श्री अजय बत्रा जी, जनरल सेक्रेटरी हिसार उद्योग संघ, टू एक्सप्रेस हिज व्यूज। प्लीज बत्रा जी। Am I audible? आवाज आ रही है मेरी? Yes sir, perfectly. Respected Shri Gurpratap ji, Deputy Director MSME Haryana, respected Upender Kumar ji, AGM
PNB, CA Bharat Jain ji, my brother and friend Ashwini Singhal ji, and entire team of ICWA हिसार। सबसे पहले तो आप सबको MSME डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं ICWA हिसार का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया आप सबसे इंटरेक्ट करने का। बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, डे टू डे एक्टिविटीज में हम लोग अपने CA से कुछ ना कुछ तो सीखते ही रहते हैं, और आज तो मौका मिलेगा बहुत कुछ सीखने का, बहुत कुछ समझने का, बहुत कुछ सुनने का। एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते मैं ये समझता हूँ कि हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हमें अपना काम करना है और पैसा कमाना है। ऑनेस्टली ये तो एक मकसद होता ही है, लेकिन इसके अलावा भी हमारे कुछ एम्स होने चाहिए, जैसे कि हम लोग अपने आप को कैसे स्टैंड रख पाते हैं, हम लोग इकोनॉमिक क्राइसिस होने के बावजूद स्टेप बाय स्टेप कैसे ऊपर बढ़ सकते हैं या अपने आप को स्टैंड रख पाते हैं, अपनी क्वालिटी को, अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल लेवल तक हम कैसे लेके जा सकते हैं। ये सब चीजें जो है ना, ये डे टू डे हमें हमारे CAs ही सिखाते हैं। एंड आई थिंक CAs आर द रियल मैनेजर्स ऑफ आवर इकोनॉमी। सो जैसे उपेंद्र कुमार जी ने कहा कि इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि हमें कोई भी काम करना है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कोई नया यूनिट लॉन्च करना है, तो हमें क्वालिफाइड CA की जरूरत पड़ती है और होना भी चाहिए। हम उन्हीं से कुछ सीख पाते हैं और वो हमें गाइड करते हैं। तो आज का दिन तो मैं ये समझता हूँ कि ज्यादा बोलने का नहीं है, आप लोगों से सुनने का है, समझने का है। तो एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड तहे दिल से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Ajay ji. Now I request our chief guest, Shri Guru Pratap Singh, Deputy Director, State MSME Hisar, to express his views. Please, sir. थैंक यू जी। सबसे पहले मैं जो ऑर्गेनाइजर हैं चार्टर्ड काउंसिल हिसार ब्रांच, मैं इनका अपनी ओर से, स्पेशली अपने डिपार्टमेंट की ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से इनका धन्यवाद करता हूं कि जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया इंटरनेशनल MSME डे पे, और ये जो हम एक असेंबल हुए हैं इसके फ्रूटफुल रिजल्ट आएंगे। तो मैं अजय बत्रा जी का जो एसोसिएशन की तरफ से आए हैं, और डायरेक्टर अश्विनी सिंघल जी, डायरेक्टर गणेश रोड लाइन्स, CA हिसार जोन के चेयरमैन जैन, वाइस चेयरमैन पवन मित्तल जी, और इनकी कंप्लीट यूनिट जो भी आज हिसार, जींद और फतेहाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनका सभी का इस MSME डे पे स्वागत करता हूं। जो CA है, बॉडी है, एक बहुत ही इनका क्रूशियल रोल होता है MSME की डेवलपमेंट के लिए। तो मैं पहले भी, मेरे पास हिसार का चार्ज रहा था जब इंडस्ट्री एंड कॉमर्स में थे। तो अब मैं बताना चाहूँगा कि हरियाणा सरकार ने एक विशेष प्रयोजन के तहत हरियाणा स्टेट में MSME डिपार्टमेंट का गठन किया है, डिपार्टमेंट कॉन्स्टिट्यूट किया है, जिसके तहत प्रत्येक जिला में डिस्ट्रिक्ट MSME सेंटर की स्थापना की गई है। तो मेरे को जिला फतेहाबाद में के साथ हिसार और सिरसा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है। तो मैं आप सभी से सहयोग चाहूंगा कि हम जिस उद्देश्य के लिए डिस्ट्रिक्ट MSME सेंटर की स्थापना की गई है, हम उसको सार्थक करने में आपकी बॉडी का मेरे को सहयोग आवश्यक होगा, और मैं आशा भी करता हूं कि आपसे पूर्ण सहयोग मिलेगा। आज हम शेयर करेंगे आपके साथ कुछ स्कीम्स के बारे में जो MSME के लिए हैं, क्योंकि MSME का किसी स्टेट की या किसी भी देश की GDP में अहम योगदान होता है। तो जो हमारे MSMEs हैं उनके लिए जो क्लियरेंसेस सबसे पहले होता है कि जब भी कोई MSMEs को अपना एस्टेब्लिश करना होता है, तो उसके लिए उनके क्लियरेंसेस, जो साइट क्लियरेंसेस है, प्रोजेक्ट क्लियरेंसेस है,
वो उन्होंने ऑब्टेन करनी होती है। तो उसके लिए एक सिंगल विंडो सर्विस के माध्यम से उनको सेवाएं दी जा रही हैं। HEPC पोर्टल है, इन्वेस्ट हरियाणा पोर्टल है, जो शायद सभी को विदित होगा, और इसके माध्यम से जो भी उनको क्लियरेंस होती है वो तय दिन में है। और इसमें अभी जो पहले 30 डेज का मैंडेट था उसको 15 डेज में MSMEs को ये जो भी क्लियरेंस वांछित होती हैं उनको प्रदान की जा रही है गवर्नमेंट ऑफिस की तरफ से। तो इसमें जो अपनी MSMEs के लिए इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं, जो हमारी स्कीम्स पहले से चलती आ रही हैं, क्योंकि हमारे जो ज़्यादा बैकवर्ड रीजन है तो उसमें एक जो MSME की इम्पोर्टेंट स्कीम है PMEGP स्कीम है, जो माइक्रो यूनिट्स के लिए थी, जिसमें सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के प्रोजेक्ट कवर होते हैं। तो इसमें 25 लाख तक के जो नए प्रोजेक्ट के लिए कोई भी एंटरप्राइज इसके अंदर ऑनलाइन PMEGP पे जाके अपना आवेदन करके और इसमें अपना प्रोजेक्ट अप्लाई कर सकता है, और वहीं से सीधा वो प्रोजेक्ट जो है हम डायरेक्ट उसको स्क्रूटनी करके, अगर उसकी स्कोर है, ग्रेड है, वो 60 से अबव होता है, देन हम उनको फॉरवर्ड करते हैं उनकी जो प्रेफर्ड ब्रांच है। तो इसके तहत सब्सिडी कंपोनेंट है, बैक एंडेड सब्सिडी है, वो शहर में 15 से लेकर 25% तक है, और रूरल एरिया में 25 से लेकर 35% तक है। इसी के पैरेलल एक नई स्कीम शुरू की गई है PMFMD, जो पेंडेमिक के कारण जो डिस्ट्रेस सेक्टर था, जो इनफॉर्मल रूप में फूड प्रोसेसिंग में कार्य कर रहे हैं, उनको फॉर्मलाइजेशन के लिए एक नई स्कीम लॉन्च की है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेट के साथ मिलकर 60 और 40 रेशो में वो शेयर कर रहे हैं। इसमें 10,000 करोड़ का 5 साल के लिए है ये स्कीम प्रोविजन रखा गया है, और 2 लाख एंटरप्राइजेस को इसमें कवर करने का प्रोग्राम है। तो इसमें फूड प्रोसेसिंग के अंदर हमने देखा है कि बहुत से लोग हैं जो इनफॉर्मल रूप में ओपन में खुले में बेच रहे हैं, अपना छोटा छोटा जो काम कर रहे हैं, और पीढ़ी दर पीढ़ी उसी तरीके से काम करते रहते हैं। तो उसमें उनको कि वो इसमें फॉर्मल तरीके में आके अपने प्रोजेक्ट्स को नई टेक्निक के साथ, जो आज समय की आवश्यकता है, उसके तरह काम करें। तो इसके तहत जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं वो इसमें अपना ऑनलाइन अप्लाई कर सकती हैं। इसके तहत 35% जो है उनके लिए सब्सिडी का प्रोजेक्ट कॉस्ट पे सर्विस जो सब्सिडी का प्रोविजन है। तो इसके तहत नए प्रोजेक्ट भी आ सकते हैं और एग्जिस्टिंग के लिए भी है। तो इंडिविजुअल जो भी हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, इंडिविजुअल यूनिट हैं, वो पोर्टल पे PMFMG का पोर्टल है जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की साइट खुल जाती है, तो उसके अंदर लॉग इन करके एप्लीकेंट अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो जो CA बॉडी है आपकी, जो आपकी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हमारे हैं, साथी हैं, उनका बहुत योगदान होता है गाइड करने के लिए, क्योंकि जो हमारे एंटरप्राइजेज होते हैं उनको स्कीमों के बारे में और जो भी उनको इंसेंटिव मिलने होते हैं उनके प्रति ना तो उनके पास इतना समय होता है, ना ही वो अपडेट होते हैं कि उनका लाभ ले पाए, इसलिए वो वंचित रह जाते हैं। कहीं किसी ने समय पे अप्लाई नहीं किया, किसी के पास रेगुलेटरी अप्रूवल की कमी के कारण, और मैक्सिमम जो है वो इसमें लाभ लेने से गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उससे वंचित रह जाते हैं। अगर उनको शुरू में इनिशियल स्टेज में प्रॉपर गाइड करके, जो भी जितने भी हमारी रेगुलेटरी अप्रूवल्स हैं उनको लेके हम प्रॉपरली चलें, आगे बढ़े, साइट के रिगार्डिंग होती हैं, प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग होती हैं, तो ताकि हमें इन फ्यूचर कोई भी दिक्कत ना आए गवर्नमेंट से जो इंसेंटिव स्कीम्स हैं उनका फायदा लेने में। तो PMEGP के तहत जो भी छोटे छोटे हमारे हैं, इनफॉर्मल रूप में काम कर रहे हैं, जो कोई भी है, जैसे कोई बेकरी का यूनिट है, फूड सेक्टर में है, मिल्क प्रोडक्ट है, हमारे ग्रेन मिलिंग करते हैं, कोई छोटा आटा पिसाई का काम कर रहा है, कोई ऑयल मिल है, एडिबल ऑयल की है, इसी तरह है मीट मछली प्रोसेसिंग है, इस प्रकार के जो भी फूड प्रोसेसिंग के अंदर इन्वॉल्व होती हैं एक्टिविटीज, वो सारी इसमें कवर होती हैं। तो उसमें
ये जो PMFM की स्कीम है, इसको इससे लिंक किया गया जो हमारे डिस्ट्रेस्ड सेक्टर है पेंडेमिक के कारण। तो इसमें मैं एक बार इस पे पूरा सभी से अनुरोध करूंगा कि इस पे फोकस किया जाए। इसमें हमें बहुत टारगेट मिले हैं और बहुत अच्छी स्कीम है। इसके अंदर प्रोजेक्ट कॉस्ट का 35% जो है सब्सिडी है, 10% उसका कंट्रीब्यूशन होता है, 90% बैंक से लोन का इसमें प्रोविजन है। तो इसके अंदर जो दो इसमें सेक्टर हैं, एक तो है नए, जो नया एंटरप्राइज सेटअप करने के लिए एक एग्जिस्टिंग है। नए में इसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अप्रोच है। उसमें जो हिसार डिस्ट्रिक्ट है उसमें मिल्क प्रोडक्ट है, फतेहाबाद में सिट्रस फ्रूट्स हैं और सिरसा में भी किन्नू है। तो इसमें नए प्रोडक्ट आ सकते हैं, बाकी जो है वो एग्जिस्टिंग के लिए है। तो दोनों ही एग्जिस्टिंग और न्यू जो मैक्सिमम इस स्कीम का फायदा लें। मैं सभी से जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस स्कीम को पब्लिसाइज करें। जो भी आपके साथ या आपके जुड़े हुए हैं एंटरप्राइज हैं, जो प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर हैं, उनको इस स्कीम का फायदा मिले। एक तीसरा है जो हमारी जो MSME पॉलिसी है, उसके अंदर जो हमारी नई जो बनी है चीफ पॉलिसी 2020, उसकी पेंडेमिक के कारण, वैसे तो वो 1 जनवरी 2021 से लागू हो चुकी है, बट पेंडेमिक के कारण उनकी जो स्कीम्स थी, जो इंसेंटिव स्कीम थी, वो नोटिस नहीं थे। अब वो मैक्सिमम स्कीम नोटिफाई हो चुकी है और इन फ्यू डेज वो पोर्टल पे अपलोड कर देंगे हमें। तो ये जो स्कीम्स हैं इसमें MSME के लिए, इसमें जो हमें काफी मोर देन 20 स्कीम्स हैं जिनका हम फायदा ले सकते हैं। इसमें जैसे कोई परचेज करते हैं, लैंड परचेज करते हैं, तो उसमें जो स्टैंप ड्यूटी लगती है वो रिफंड हो जाती है जब वो प्रोडक्शन में आती है। उनको वैट सब्सिडी है। एक नई स्कीम शुरू की गई है इसमें ग्रामीण औद्योगिक विकास योजना के नाम से। उसके अंदर सब्सिडी रखी गई है 25 लाख तक, 20 लाख तक, 15% नॉन टर्म, और उसमें इंटरेस्ट सब्सिडी है। एक नई स्कीम जो इसमें इस पॉलिसी में 2020 वाली में पॉलिसी में की गई है, वो इंटरेस्ट सब्सिडी MSME के लिए 5 से लेकर 7% इंटरेस्ट सब्सिडी का प्रोविजन रखा गया है 7 सालों के लिए। अलग अलग कैटेगरी ब्लॉक्स हैं, उनके लिए अलग अलग इसको डिफाइन किया गया है। अब MSME की डेफिनेशन भी आप सभी को विदित होगा कि वो भी अब जो उसको टर्म लोन और इन्वेस्टमेंट ऑन मशीनरी के आधार पे उनको डिफाइन किया गया है। जो जिनकी प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़ तक है और 5 करोड़ तक उनकी टर्नओवर है, उनको माइक्रो में डिफाइन किया गया है। इसी तरह ही जिनके जो है 10 करोड़ है और 50 करोड़ तक उनकी टर्नओवर है, उस कमाल में है। इसी तरह है 50 करोड़ और 250 करोड़ तक भी। तो MSMEs की जो डेफिनेशन है, अब ना मशीनरी पे ना कंसंट्रेट होके उसको उसकी टर्नओवर को भी उसमें किया गया। तो इस प्रकार जो भी हैं, जो ये जितनी भी स्कीमें हैं, माइक्रो के लिए हैं, कोई मीडियम के लिए हैं, कोई स्मॉल के लिए हैं, उन सभी का फायदा उनको मिले। सभी को जो हमारे एंटरप्राइजेस हैं जो वंचित रह जाते हैं, उसमें आपका रोल क्रूशियल रोल है ये ऑडिट, ताकि वो समय समय पे करवाएं, ताकि कोई भी इससे जो फायदा है गवर्नमेंट देना चाहती है रियल सेंस में, हम उनको प्रोवाइड कर सकें। एक MSME फैसिलिटेशन काउंसिल है, ये भी एक जो हरियाणा की है, ये बहुत अच्छा इसका है। इसमें जो डिलेड पेमेंट होती है, कोई रिकवरी नहीं हो, किसी की जो है फंस जाती है, जो उनके रिकवरी होती है, तो 45 दिन से अगर कोई डिले होती है तो वो अपना केस फाइल कर सकता है स्टेट MSME फैसिलिटेशन काउंसिल के पास, और वो स्टेट फैसिलिटेशन काउंसिल उसको वो उनके रिकवरी करवाती है। इसमें उनके लैंड ऑफ एरिया रेवेन्यू से भी, चाहे वो कहीं का भी हो इन इंडिया, तो जो रिकवरी जिनसे हमने लेनी है, तो वो जो हमारा हरियाणा स्टेट का है MSME है, वो वहाँ अपने स्टेट फैसिलिटेशन काउंसिल के पास अपनी वो सूट फाइल करके तो वो अपनी रिकवरी को ले सकते हैं। एक तीसरा है कि गवर्नमेंट, जो अगला पॉइंट है मेरा, हम रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग,
क्योंकि सरकार के पास कोई कुछ एस्टेब्लिशमेंट हमारी थी जो वो एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होती थी। एमएसएमई कोई जो बिजनेस से शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है जो लेबर डिपार्टमेंट का, उसके तहत रजिस्टर्ड होते थे। तो इसलिए सरकार के पास कोई ऑथेंटिकेटेड डेटा नहीं हो पाता था पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए। तो अब सरकार ने, जो सरकार का एक नया डिपार्टमेंट है हरियाणा सिटीजन इंफॉर्मेशन सोर्स डिपार्टमेंट, जो डायरेक्ट सीएम साहब के अंडर है, काम कर रहा है, जो हमारे ई दिशा है उसी के तहत गवर्न कर रहे हैं। तो उसके तहत तो उन्होंने एक नाम रजिस्ट्रेशन हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम का नया शुरू किया है, जिसके तहत वो छोटी से लोटी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट से लेकर बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस सभी को एक प्लेटफॉर्म पे रजिस्ट्रेशन का ये कंसेप्ट लेके आए हैं, जिसके तहत तो उनको, ताकि उनको एक ही पॉइंट पे सारा ऑथेंटिकेटेड डाटा उपलब्ध हो सके। तो इसमें मैं विशेष आग्रह करना चाहूंगा जो भी हमारे ये बंधु जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में, कि इसके तहत आप हम रजिस्ट्रेशन पे हर दिन आप इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दें। अपने जो आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं उनको हम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराएं, ताकि सरकार का जो मैंडेट है हम प्रत्येक एस्टेब्लिशमेंट को इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर सकें। मैंने पहले भी जो व्हाट्सएप के माध्यम से सभी को रिक्वेस्ट भेजी थी कि आप इसमें रजिस्ट्रेशन कराएं। आज फिर मैं उसमें दोबारा से अपनी जो है सभी को आग्रह करता हूं कि इसमें आप अपना योगदान दें। आप जितना भी कर सकते हैं, जितनी एस्टेब्लिशमेंट्स को रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, 2-3 मिनट में वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा हो जाता है। तो इसमें सभी जो है, इसमें जितने भी लोग, इसमें इवन ट्रेडर्स भी कवर हैं, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस एंड ट्रेडर्स, हमने सभी को ट्रेडर्स को भी साथ लेके चलना है। एमएसएमई डिपार्टमेंट का मैंडेट अब ट्रेडर्स को भी प्रमोट करना है, ट्रेडर्स और एमएसएमई को लिंक करना है, ताकि एमएसएमई के प्रोडक्ट को मार्केट जो है मिल सके, ट्रेडर्स के साथ उनको लिंक कर पाए। हमने ट्रेडर वेलफेयर बोर्ड का गठन किया गया है हरियाणा सरकार ने। तो इन सभी के तहत जो हमारा डिपार्टमेंट है काम करेगा। तो मेरा ये इसमें आज जो है मेन जो मेरे को पहले अपने शिवाजी साहब ने भी कहा था कि आप, जब मैं उनको फोन पे बात होती थी कि आप हमारी इस वेबिनार के माध्यम से हमारी संस्था में आप सभी से जुड़े, तो ये बहुत ही अच्छा हुआ है जो आप एमएसएमई डे के हम इकट्ठे हुए हैं। तो मैं एक बार फिर से आपके जो आयोजक हैं, जिन्होंने एमएसएमई डे पे आज ये कार्यक्रम आयोजित किया है, मैं सभी को हार्दिक अपना धन्यवाद करता हूँ। और ये जो कार्यक्रम आयोजन किया गया है, ये तभी सार्थक होगा जब हम इकट्ठे मिलकर एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन पे, क्योंकि हम सभी एक दूसरे के पूरक हैं, हम कम्प्लीमेंट्री हैं। तो आप, हम और एसोसिएशन, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और बैंकिंग सिस्टम सभी मिलके काम करेंगे, तभी हम इसको जो एमएसएमईज है, इनकी डेवलपमेंट के लिए जो भी योजनाएं हैं उनको उनका लाभ मिल सके, और उनको जो उनके डेवलपमेंट में हम अपना योगदान दे सकें। इसके लिए हम आगे लेके आना चाहते हैं। तो हिसार और जो मेरे पास जो 3 जिले हैं, तीनों में मैं चाहूंगा कि वो हम इसको हरियाणा स्टेट में इसको लेके आए। जो भी मेरे पास स्कीम्स हैं उनमें बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के साथ भी हम मीटिंग करने वाले हैं एलडीएम साहब के माध्यम से। तो फिर मैं एक बार आयोजकों का इसमें आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने आज मेरे को ऑनर किया इस कार्यक्रम के लिए, एमएसएमई के लिए। तो और एसोसिएशन की तरफ से मैं जयवत्रा जी का, और बैंकिंग की तरफ से जो हमारे एजीएम साहब आए हुए हैं, उनके योगदान की भी मैं अपेक्षा करता हूं कि बैंकिंग भी हमारे जो हैं इसमें योगदान दें, खुले दिल से एमएसएमई को स्वीकार करें, जो हमारे बिल्कुल, क्योंकि एमएसएमई में बहुत छोटे छोटे लोग भी आते हैं,
बहुत छोटे जो हैं उनका भी योगदान होता है, उनको भी बैंक से सहायता मिले ताकि वो भी अपना रोजगार दे सकें, क्योंकि एमएसएमई का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बहुत बड़ा योगदान। तो इस हीप स्कीम के तहत इन्होंने रखा है 5 लाख लोगों को रोजगार देने का प्रावधान रखा गया है। तो मैं फिर एक बार सभी का धन्यवाद करता हूँ, आयोजकों का स्पेशल धन्यवाद करता हूँ कि इस प्रकार की वो मीट्स आयोजन करते रहें ताकि हम एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से कार्यक्रमों को बेहतर तरीके से चला सकें। धन्यवाद। Thank you, Guru Pratap Singh ji, for sharing different types of government schemes. Now I request CA Pankaj Gupta ji to enlighten us on role of CAs in MSME. Please, Pankaj ji. Thank you, sir. Our chief guest, Shri Guru Pratap Singh ji, Deputy Director State MSME, Dr. Upendra Kumar, Ajay Batra ji, Ashmi Singhal ji, CA Bharat Jain ji, Chairman, ICISR, Shri Pawan Mittal ji, CA Vishesh Bhardwaj ji, Secretary, CA Rajdeep Singh ji, Treasurer. Thank you for calling me. काफ़ी कुछ तो उपेंद्र जी ने और डिप्टी डायरेक्टर सर ने बता दिया, बट फिर भी मैं जो अपनी तरफ से जो बेस्ट है मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगा। एक ही मिनट, मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके, so we will be discussing role of CAs in MSME. उपेंद्र जी ने भी बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया एंड डिप्टी डायरेक्टर सर ने भी बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं पूरे MSME इकोसिस्टम में। तो उसी के ऊपर हम आज का टॉपिक है, तो हम उसी को आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें जो MSME की क्लासिफिकेशन है जो अभी पिछले साल जून 2020 में चेंज कर दी गई थी, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। माइक्रो इन्वेस्टमेंट अप टू ₹1 करोड़ एंड टर्नओवर जो है अप टू 5 करोड़, वो माइक्रो में क्लासिफाई होती हैं। पहले जो इन्वेस्टमेंट या टर्नओवर में मैन्युफैक्चरिंग की अलग होती थी एंड जो सर्विस सेक्टर होता था उनकी अलग होती थी, वो सब अब ख़त्म कर दिया गया। अब टोटल ही, जैसे अभी डिप्टी डायरेक्टर सर ने भी बताया था कि ट्रेडर्स भी बीच में हैं, तो सर्विस सेक्टर, ट्रेडर, मैन्युफैक्चरिंग, तीनों के बीच में कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं है, सभी के लिए सेम डेफिनेशन है। माइक्रो का मतलब है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी अप टू ₹1 करोड़, टर्नओवर 5 करोड़। स्मॉल के लिए इन्वेस्टमेंट 1 से 10 करोड़, टर्नओवर 50 करोड़, और मीडियम इन्वेस्टमेंट 10 से 50 करोड़ और टर्नओवर 250 करोड़ से नीचे नीचे। कुछ इस जो क्लासिफिकेशन है इसके कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये कंपोजिट है, इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर दोनों ही मीट होने चाहिए। अगर वो मीट नहीं होते हैं तो फिर वो नेक्स्ट कैटेगरी में चला जाता है, हायर चला जाता है। तीसरा पॉइंट जो यहाँ पे लिखा है, इफ एन एंटरप्राइज इज क्रॉसिंग द सीलिंग लिमिट्स स्पेसिफाइड फॉर इट्स प्रेजेंट कैटेगरी in either of the two criteria of investment or turnover, it will be placed in the next higher category. But important point hai, no enterprise shall be placed in the lower category unless it goes below the ceiling limits specified in its present category in both the criteria. कहने का मतलब ये है कि अगर आज मैं माइक्रो में क्लासिफाई कर रहा हूँ और अगले साल जाकर के मेरी टर्नओवर बढ़ जाती है, इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ती है, तो मेरी क्लासिफिकेशन स्मॉल में हो जाती है। मेरी 6 करोड़ टर्नओवर हो जाती है तो मेरी क्लासिफिकेशन स्मॉल में हो जाएगी। लेकिन अगर मैं स्मॉल में हूँ और मेरी इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर दोनों ही 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में नहीं आ जाती, तो मैं माइक्रो में क्लासिफाई नहीं होऊंगा, मैं स्मॉल में ही रहूँगा। डाउनग्रेडिंग के लिए दोनों क्राइटेरिया मीट होने चाहिए, लेकिन इन अपस्केलिंग के लिए कोई भी एक क्राइटेरिया अगर मैं क्रॉस कर जाता हूं तो मेरी क्लासिफिकेशन नेक्स्ट कैटेगरी में हो जाएगी। ऑल यूनिट्स विद गुड्स
and service tax identification number listed against the same permanent account shall be collectively treated as one enterprise. ये सेम पैन के अंदर जितने मर्जी जीएसटी रजिस्टर्ड हो वो सारी की सारी यूनिट्स को इकट्ठा एक ही यूनिट ट्रीट किया जाएगा. अगर एक ही स्टेट में मल्टीपल ब्रांचेस हैं या मल्टीपल स्टेट्स में उनकी लोकेशंस हैं, सेम पैन सेम जीएसटीएन विल बी क्लासिफाइड एज वन एंटरप्राइज. ये सेकेंड पॉइंट यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है. एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ शेल बी एक्सक्लूडेड. कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पे टर्नओवर वर्ड है इसमें से एक्सपोर्ट टर्नओवर को एक्सक्लूड किया गया है. अगर मेरी 90 लाख की डोमेस्टिक टर्नओवर है और 50 लाख की 5 करोड़ की मेरी एक्सपोर्ट टर्नओवर है तो टोटल 590 है, लेकिन मेरी क्लासिफिकेशन जो है वो माइक्रो में ही रहेगी. Information as regard turnover and export turnover for an enterprise shall be linked to income tax and GST. पहले तो सेल्फ डिक्लेरेशन रहेगा जब हम रजिस्टर करते हैं. उसके बाद जितनी भी टर्नओवर्स हैं, जो भी टर्नओवर हम इनकम टैक्स में एंड जीएसटी में डिक्लेयर करते हैं वही काउंट होंगी. एंड सिस्टम इज इंटीग्रेटेड एज सच कि वो आपकी पीछे से जो भी टर्नओवर हम डिक्लेयर करते हैं वो हमारी इनकम टैक्स एंड जीएसटी पोर्टल से वैलिडेट कर लेता है. Turnover related figures of such enterprises which do not have PAN will be considered on self-declaration basis for a period up to 31 March 2021 and thereafter PAN and GST shall be mandatory. कहने का मतलब ये था कि जब ये 2020 में नई स्कीम आई थी उस टाइम पे जो नए यूनिट्स स्टार्ट हो रहे थे उन यूनिट्स के लिए एक छोटा सा ट्रांजिशन पीरियड दिया गया था कि अगर आपके पास PAN और GSTN नहीं है तो आप सेल्फ डिक्लेरेशन फाइल कर सकते हैं. आज की डेट में जब भी कोई नया एमएसएमई आता है तो उसके लिए पैन और जीएसटीएन होना ज़रूरी है, तभी वो अपनी सारी आगे बेनिफिट्स क्लेम कर पाएगा या ले पाएगा. इन्वेस्टमेंट के लिए क्या रूल्स हैं जो दिए गए हैं? ऑल यूनिट्स विद जीएसटीएन लिस्टेड अगेंस्ट द सेम पैन shall be collectively treated as one enterprise. Same turnover वाला criteria है. Investment means investment in plant and machinery और equipment. Equipment यहाँ पे सर्विस सेक्टर के लिए यूज़ किया गया है. मतलब किसी भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट या सर्विस सेक्टर के लिए हमने ये कंसिडर करना है. इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट विल बी लिंक्ड टू द इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ द प्रीवियस ईयर्स. तो ये पिछले साल की 31 मार्च को जो वैल्यू स्टैंड करती हैं इनकम टैक्स के हिसाब से, तो अगर कंपनी भी है तो भी उसकी इनकम टैक्स के हिसाब से जो शेड्यूल बना है फिक्स्ड एसेट का वो वाली वैल्यूज कंसिडर करी जाएंगी. ये बेसिकली यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए है क्योंकि कंपनीज के हिसाब से, अगर कंपनीज एक्ट के हिसाब से हम वहाँ पे WDV कैलकुलेट करेंगे और जो नॉन कॉर्पोरेट हैं उनके लिए अगर हम WDV कैलकुलेट करेंगे तो वो डेटा में मतलब गलती हो जाएगी, वो गलती हो जाएगी. तो इसलिए दोनों तरफ ही उन्होंने इनकम टैक्स की वैल्यूज को कंसिडर किया है फॉर कॉर्पोरेट एंड नॉन कॉर्पोरेट एज वेल. In case of new enterprise where no prior ITR is available, investment will be based on self-declaration of promoter of the enterprise and such relaxation shall end after 31 March of the financial year in which it files its first ITR. ये new entities के लिए है कि फर्स्ट टाइम जब वो MSME पोर्टल पे जाके इन्वेस्ट हरियाणा में जाके अपने आप को एनरोल करता है तो वो सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर वहाँ पे डिक्लेयर कर सकता है कि कितनी रहेंगी. उसके बाद वो अगले साल से जो भी उसकी ITR में फिगर है वही कंसिडर होंगी. द एक्सप्रेशन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट ऑफ द एंटरप्राइज shall have the same meaning as assigned to it plant machinery in the income tax rules 1962 and shall include all tangible assets other than land and building, furniture and fittings. Intangibles not included. Intangible assets जितने भी हैं, चाहे आपने सॉफ्टवेयर कैपिटलाइज किया है, पेटेंट्स हैं, ट्रेडमार्क्स हैं या गुडविल आपने कोई बिजनेस खरीदा है, in that case that will also not be included in the definition of plant and machinery or equipment. Cost of pollution control, R&D, industry safety devices and such other items as may be specified by notification shall be included.
जैसे वहाँ पे एक्सपोर्ट टर्नओवर का बेनिफिट दिया था, वैसे यहाँ पे पोल्यूशन कंट्रोल, R&D इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिवाइसेस और सिमिलर आइटम्स की भी एग्जम्पशन दी गई है। उसको प्लांट एंड मशीनरी एंड अदर इक्विपमेंट में क्लासिफाई नहीं करेंगे, उसकी वैल्यू में भी इंक्लूड नहीं करेंगे। If the enterprise is a new one without any ITR, the purchase invoice value of plant and machinery or equipment, whether purchased first hand or second hand, shall be taken into account, excluding GST on self disclosure basis. पहले साल में जब ITR नहीं है तो जो भी उसका इनवॉइस है, मतलब यहाँ पे ये भी मतलब आता है कि उसको इनवॉइस संभाल के रखना है, चाहे वो माइक्रो लेवल यूनिट है, उसको अपनी प्लांट मशीनरी की सारे के सारे इनवॉइसेस, सेल्स के इनवॉइसेस सारे के सारे उसको संभाल के रखने हैं। MSME रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले जो स्टेप है, अभी डिप्टी डायरेक्टर सर ने भी बताया था, हमारे पास जब भी कोई नया क्लाइंट आता है या कोई भी होता है तो MSME के लिए आज की डेट में बहुत सारे इंसेंटिव अवेलेबल हैं या बहुत सारे और सरकार बेनिफिट दे रही है, और एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पे हमें सबको रजिस्टर कराना मैंडेटरी है। तो कोई भी नई एंटिटी आती है तो ये हमारी ड्यूटी बन जाती है कि हम उसकी जो कंप्लायंसेस हैं उसको टेक केयर करें और उसकी एक उद्यम रजिस्ट्रेशन हम करवा दें, चाहे वो कॉरपोरेट है, नॉन कॉरपोरेट है, माइक्रो है या किसी भी लेवल का है, छोटा दुकानदार ही क्यों ना है, तो हमें उसका एक उद्यम रजिस्ट्रेशन करा देना चाहिए। सर ने बताया था 2 मिनट का काम है, मेरे ख्याल से तो 2 मिनट से भी कम टाइम लगता है। उसमें उसका नाम, एड्रेस, पैन एंड GST ये सब फाइल करने हैं और वो ऑटोमेटिकली आपको वैलिडेट करके आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन दे देगा। बैंक्स ने भी अभी इंसिस्ट करना शुरू कर दिया है, जहाँ जहाँ पे एक्सपोजर है बैंक का, कि उद्यम रजिस्ट्रेशन दीजिए। एंड आगे जाके जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जब भी कोई करंट अकाउंट ओपनिंग की रिक्वेस्ट आएगी तो उसमें भी पैन के साथ साथ उद्यम रजिस्ट्रेशन की वो रिक्वायरमेंट डाल देंगे। अभी आज की डेट में नहीं है, बट आगे जाके ये हो जाएगा, क्योंकि उद्यम रजिस्ट्रेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये एक बर्थ सर्टिफिकेट है किसी भी नए बिजनेस का। आधार मैंडेटरी फॉर इंडिविजुअल और कर्ता इन केस ऑफ HUF, मैनेजिंग पार्टनर रिस्पेक्टिवली। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें मैनेजिंग पार्टनर का, किसी भी एक मैनेजिंग पार्टनर का आधार होना मैंडेटरी है। GSTN, पैन एंड आधार ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी इन अदर केसेस। अगर कॉर्पोरेट है, सोसाइटी है, ट्रस्ट है या कुछ भी है, हाँ सोसाइटी एंड ट्रस्ट जो है वो भी अगर कोई अपने बायलॉज के हिसाब से या अपने पर्पस को अचीव करने के लिए कोई छोटा मोटा अगर सेल परचेज करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उनके लिए भी उद्यम रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। तो उनके केस में ऑथराइज सिग्नेटरी मतलब एक रेजोल्यूशन डाला जाएगा कंपनी का या सोसाइटी का या ट्रस्ट का कि हु इज़ द ऑथराइज पर्सन, तो उसका पैन एंड आधार भी चाहिए होगा। ऑल MSME रजिस्टर्ड अंडर erstwhile UAM, ये पहले जो 31 मार्च से पहले था वो सारे को भी नए उद्यम के अंदर हमें रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। शैल बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अगेन, क्योंकि अभी ये सब डाटाबेस सब नया बना रहे हैं, सब कुछ नया फ्रेश कर रहे हैं। An enterprise registered with any other organization under Ministry of Micro, Small, Medium shall register itself under उद्यम रजिस्ट्रेशन। अब कहीं और अलग अलग रजिस्ट्रेशंस कराने की ज़रूरत नहीं है। पहले क्या होता था कि एक ही एंटिटी को बहुत सारी जगह जाके बेनिफिट्स लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती थी। तो अब आज की डेट में सिर्फ एक उद्यम रजिस्ट्रेशन ही है, सिंगल सर्विस पोर्टल है, वहीं पे सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करानी है। Based on the information furnished or gathered from government sources including ITR or GST return, the classification of enterprise will be updated. Now ये जो उद्यम रजिस्ट्रेशन का जो पोर्टल बनाया गया है, ये बैकएंड से, जैसे मैंने पहले भी बताया, इनकम टैक्स और GST के साथ लिंक्ड है। तो जैसे जैसे आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न एंड GST रिटर्न्स फाइल करेंगे तो आपकी जो क्लासिफिकेशन है वो सिस्टम अपने आप ही अपग्रेड या डाउनग्रेड करता चला जाएगा। आपको बार बार कोई इंफॉर्मेशन फाइल करने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है जब भी आपकी कोई क्लासिफिकेशन चेंज होती है। हाँ,
अगर आपका कोई चेंज ऑफ सिग्नेटरी हो रहा है, चेंज ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन हो रहा है, एड्रेस चेंज हो रहा है या कुछ और चेंजेस आ रहे हैं, तो उस सिनेरियो में आपको उसकी अपडेशन फाइल करनी ज़रूरी है। जो हमारा मेन टॉपिक है, रोल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मैंने कोशिश करी है कि मैं सबसे पहले जो भी रोल है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का इस सारे इकोसिस्टम में, मैं उसको एक ही सिंगल लाइन में डिफाइन करूं। CAs plays a vital role in entrepreneurship development, number one, and business ecosystem, two, that is conducive to its emergence, मतलब उसके पैदा होने से लेकर के easy finance, expertise, infrastructure, skills, and a high level of motivation for change. देखिए, आपके पास अदर देन जो आपके पास रेगुलर काम आते हैं, क्लाइंट्स आपके पास आकर के अपनी परेशानी आपके साथ शेयर करते हैं कि जी मेरी DP नहीं बन रही, मेरी ये नहीं हो रहा, मेरी लड़का पैसे लेके भाग गया, मैं ये कैसे करूं। ये सारा जो रोल है ना, यहाँ पे मैंने यही बताया कि CA प्लेज अ वाइटल रोल। वो सबसे पहले आके अपने घर में नहीं बताता, वो सबसे पहले आके आपको फ़ोन करेगा कि जी मेरा लड़का पैसे लेके भाग गया, या मेरा ये नुकसान हो गया, या मेरे को ये रिटर्न फाइल करनी है जी, वो गलत होगी जी, या ये प्रॉब्लम है। तो उसके धंधे से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वो सबसे पहले आकर के अपने CA के साथ शेयर करता है। तो यहाँ पर हमारा जो रोल है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम उसको कितना मोटिवेटेड रखते हैं, हम उसको कितना काउंसिल करते हैं, कैसे काउंसिल करते हैं कि भाई साहब वो तो चल लगी रहती है, उसकी तेर से ज़्यादा हो गई थी, या किसी भी तरीके से हर एंटरप्रेन्योर को अलग अलग तरीके से काउंसिल किया जाता है। तो not only in helping him file his return, prepare his balance sheet, make his accounts, एक CA का उससे कहीं ज़्यादा रोल है पूरे के पूरे MSME बिजनेस इकोसिस्टम में। चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, एक छोटा सा आदमी है, ये हल्दीराम की एग्जांपल है, वो एक छोटी सी मिठाई की दुकान से काम शुरू किया था उन्होंने। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस उनके पास अपने बिजनेस की थी, रेगुलेटरी कॉम्पिटेंस उनके एडवाइजर्स से उन्होंने ले लेके, मार्केटिंग के लिए भी उन्होंने अपने CA से डिस्कस करी कि मैं मार्केट कैसे डेवलप करूं, कौन से नए प्रोडक्ट बनाऊं, या क्या मैं आज की डेट में मैं सिर्फ नमकीन बनाता हूं, मैं मिठाई कौन सी शुरू करूं। अच्छा जी, मेरे ये रसगुल्ले की मार्केट है जी, वहाँ से आए थे लोग, वो कह रहे थे कि जी हमें लेके जाना है, तो मेरे को लगता है कि वहाँ पे मेरे रसगुल्ले की बहुत अच्छी डिमांड होगी, तो मैं कैसे पैकेजिंग बनाऊं, उसके लिए रिसर्च। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपका क्लाइंट जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी एडवाइजरी के ऊपर। आप अगर बोल देंगे कि इसके लिए यार मैं नहीं कर सकता, आपको कोई मार्केटिंग का बंदा हायर करना पड़ेगा, तो ही वो किसी और का मुंह देखता है जाके, नहीं तो सबसे पहले आप ही, मतलब वो आपके ऊपर डिपेंडेंट होता है, आपकी मतलब एक्सपर्टीज के ऊपर, आपकी समझ के ऊपर, या उसको सिर्फ रसगुल्ले का ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है कि जी मैं तो आपको ये बता सकता हूँ बाबूजी कि इसमें कितना पनीर लगना है, कितना तेल लगना है, कितना पानी लगना है, कितना गैस बनना है। अब मुझे बताओ कि अगर 1 लाख किलो मुझे अगर रसगुल्ले बनाने हैं तो कैसे बनाना है। तो वो सब चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। तो पूरे के पूरे हिंदुस्तान के जो एक डेवलपिंग कंट्री है, वहाँ पे इकोसिस्टम में CA का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में, बिजनेस इकोसिस्टम में, दैट इज कंड्यूसिव टू इट्स इमर्जेंस, इजी फाइनेंस। पैसे कहाँ से ले भाई, तू 1 लाख रसगुल्ले बनाएगा, तेरे पास ऑर्डर आ गया है 1 लाख रसगुल्ले का, लेकिन माल के लिए पैसे कहाँ है तेरे पास? बैंक से फाइनेंसिंग होगी। बैंक से कैसे फाइनेंसिंग होगी? कोलेट्रल नहीं है, चल कोई बात नहीं, तेरे को ऑर्डर किससे आया है? बड़ी कंपनी है तो उस ऑर्डर के बेसिस पे वर्किंग कैपिटल तेरे को टेम्पररी रिलीज करा देते हैं। अच्छा चलो बैंक से नहीं हो रहा, चलो तेरे को किसी और से अरेंज करा देते हैं। तो अपना काम पूरा कर, काम करता है, पैसे कमाता है, वो 10 खुद कमाएगा, 2 हमें देगा, 1 बैंक को देगा, जैसे भी है वो सब काम हमारी या CAs के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है।
एक्सपर्टीज के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। अगर उसको अपने ऑफिस में कुछ ऑटोमेशन करना है, किसी प्रोसेस को ऑटोमेट करना है, तो वो आके आपसे डिस्कस करता है, भाई साहब ये ना काम थोड़ा लेट हो रहा है जी, इसको बताओ जल्दी कैसे करूं, मैं क्या चेंज करूं अपने सिस्टम में कि मेरा काम ऑटोमेटिक हो जाए। उसके ऊपर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। स्किल्स के ऊपर कि भाई साहब मेरे को नया मैनेजर ढूंढ दो, भाई साहब मेरा अकाउंटेंट चला गया, नया अकाउंटेंट ढूंढ दो, भाई साहब ये माल बनाने वाला चला गया, आप देखो आप किसी कंसल्टेंसी फर्म को जानते हो या किसी ऐसे बंदे को जानते हो जो मुझे बंदे दे सके। ये सब चीज़ों के ऊपर वो डिपेंडेंट रहता है। और फिर जब भी परेशान होता है तो मैंने पहले भी बताया कि सबसे पहले आप ही को फ़ोन करता है। तो हमें तो ये लगता है कि यार ये नॉन प्रोडक्टिव बात है, मैं इसको कैसे बता दूं कि कैसे है, लेकिन अगर आप वहाँ पे उसका मोटिवेशन लेवल हाई रखते हैं तो वो बिजनेस में भी बना रहता है, आपके साथ भी जुड़ा रहता है, और आपके साथ साथ कई और लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है। फंक्शंस हम एक बारी डिस्कस करते हैं कि एक एमएसएमई के केसेस में जो सीएज हैं उनके क्या क्या रोल होते हैं या रह सकते हैं। मैंने उनको 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है: रेगुलेटरी, बिजनेस सपोर्ट एंड सर्टिफिकेशन। रेगुलेटरी, बिजनेस सपोर्ट एंड सर्टिफिकेशन। रेगुलेटरी में एक बारी हम देख लेते हैं। रेगुलेटरी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमने उनकी सारी कंप्लाइंसेस जो हैं वो इंश्योर करना, उनको एजुकेट करना, और सिस्टम कुछ इस तरीके से बनाना कि सारी की सारी कंप्लाइंसेस टाइम पे ईमानदारी से हो जाएं। जिसमें सबसे पहले आता है रजिस्ट्रेशन, जिसमें उसका किसी भी नए एमएसएमई का सबसे पहले पैन अप्लाई करना है, टैन अप्लाई करना है, ये टैक्स गलती से लिखा गया, टैन अप्लाई करना है, जीएसटी अप्लाई करना है, उसका उद्यम अप्लाई करना है, और फिर जैसे जैसे उसका वो ग्रो करता है तो उसका पीएफ ईएसआई ग्रो वो अप्लाई करना है। ऑडिट फंक्शन में टैक्स ऑडिट हैं, बैलेंस शीट के उसके ऑडिट्स हैं, जीएसटी के उसके ऑडिट्स हैं। ये सारे हम रेगुलेटरी फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं जो कि हमने उसको कराना है। अब मेरे पास एक आए एमएसएमई नया क्लाइंट आया, वो ऑलरेडी किसी से काम करा रहे थे और टीडीएस का काम वो टीडीएस नहीं काटते थे, क्योंकि उसको किसी और तरीके से वो मैनेज कर लेते थे कि टीडीएस ना काटना पड़े। हमने जब उनका इनिशियल काम किया तो उनको मतलब ही गॉट इम्प्रेस्ड कि हाँ जी ये काम ठीक तरीके से है। हमने उनको ये काउंसिल किया, मैंने कहा वो आपके हिसार से ही हैं, मतलब चंडीगढ़ में काम करते हैं, हिसार से ही हैं। उनको हमने काउंसिल किया कि जी आपका जो काम है वो बिजनेस करना है, आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि जी मेरा ये रिटर्न फाइल होगी कि नहीं, जीएसटी की रिटर्न टाइम पे फाइल होगी कि नहीं, मेरी सेल कितनी हो गई, मेरे पैसे कहाँ रह गए, मेरा टीडीएस जमा हुआ कि नहीं। और उनको हमने ये समझाया कि जी अगर आपकी रिटर्न लेट फाइल होती है या कुछ दिक्कत होती है तो उसमें ब्याज और लेट फीस लगती है, लेकिन अगर टीडीएस आप नहीं काटते या काट के लेट जमा कराते हो या नहीं भी काटते, कुछ भी दिक्कत है टीडीएस में, सीधा प्रोसिक्यूशन है और 6 महीने की जेल है। मतलब कई बारी हमारे को एमएसएमई एंटरप्रेन्योर को थोड़ा सा डराना भी पड़ता है कि भाई साहब अगर आप नहीं करोगे तो ये हो सकता है, हमने आपको बता दिया, आगे आपकी मर्जी। तो देन ही एग्रीड। तो हमने फिर उनका प्रोसेस बना दिया कि किस तरीके से आपकी एंटिटी की कंप्लायंस पूरी हो जाए, टीडीएस की टैक्स कंप्लायंसेस पूरी हो जाए, हम भी सिक्योर हो गए क्योंकि हमने उनकी टैक्स और बैलेंस शीट साइन करनी है। तो उनका सारा प्रोसेस बना दिया, ही इज़ हैप्पी। और आज की डेट में वो उनकी टर्नओवर पहले से 1.5 गुना होगी, क्योंकि जो एफर्ट अपनी बैक एंड में लगाते थे अब वही एनर्जी एंड एफर्ट सारा बिजनेस में लगा रहे हैं। हम भी कह सकते हैं कि जी हमारे आने के बाद आपकी 1.5 गुना हो गई जी टर्नओवर, हमारी फीस बढ़ाओ। तो फाइलिंग फंक्शंस में रेगुलेटरी में जीएसटी रिटर्न्स, टीडीएस रिटर्न्स, इनकम टैक्स रिटर्न्स, पीएफ रिटर्न्स, ईएसआई रिटर्न्स, ये सारे रेगुलेटरी फंक्शंस के अंदर जो बेसिक चीज़ें हैं हम करते हैं।
बिजनेस सपोर्ट फंक्शन जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको हमारे भाई लोग थोड़ा सा नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन अगर हम इसके ऊपर ध्यान दें तो हमारा क्लाइंट जो है वो बहुत अच्छी अपनी खुद की डेवलपमेंट कर सकता है, ग्रोथ कर सकता है, उसकी ग्रोथ के साथ साथ वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है, या सारा कुछ जो भी है। तो बिजनेस सपोर्ट फंक्शन में जो मुझे लगा कि क्या क्या वो हम उसको सर्विसेज दे सकते हैं या हम उसकी किस किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहला है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड पॉलिसी डिटर्मिनेशन। अगर हम क्लाइंट को, एमएसएमई क्लाइंट को अगर हम ये वर्ड बोलेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग एंड पॉलिसी डिटर्मिनेशन, तो वो डर जाएगा। तो ये हमारे आपस की समझने की ज़रूरत है कि हमने उसको ये समझाना है कि भाई साहब आप करना क्या चाहते हो, ठीक है ना। आप उसकी आपकी मतलब आप करना क्या चाहते हो, उसकी गोल सेटिंग कर दी, फिर आप उसको कैसे करना चाहते हो उसकी सारी एक बारी बैठ के प्लानिंग करो। हमने उसको इस तरीके से नहीं बोलना कि जी सर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग एंड पॉलिसी डिटर्मिनेशन हम कर देते हैं, वो एक छोटा व्यापारी है। हमने उसको ये सिखाना है, ये समझाना है कि भाई साहब जब बिजनेस करते हैं तो वो तरीके से करते हैं, धक्के से नहीं करते। तो उसके लिए एक प्लानिंग की ज़रूरत है कि आपने अगर इस साल में 1 करोड़ रुपए की सेल करने का टारगेट रखा है, तो 1 करोड़ की सेल करने के लिए आपको क्या क्या कितना कितना सामान बनाना है, वो सामान का सोर्स क्या है, कहाँ से लेना है, खरीदने के लिए आपके पास पैसे पूरे हैं कि नहीं। अगर पैसे शॉर्ट हैं तो हमारे को उसकी फंडिंग बैंक से करानी है, किसी प्राइवेट फंडिंग लेंडर से करानी है, या कहाँ से पैसे आपने अरेंज करने हैं। उतने पैसे अगर आपके पास टाइमली अवेलेबल होंगे तो जो अगर प्रॉब्लम सिचुएशन कोई आती है तो वो हम इजी तरीके से उसको देख सकते हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, देखिए जो छोटा व्यापारी होता है उसके लिए पैसा पैसा होता है, वो चाहे टर्म लोन से आ रहा है या सीसी से आ रहा है। तो कई बार वो गलती करते हैं, सीसी का पैसा उठा करके मशीन खरीद लेते हैं या सीसी का पैसा उठा के मिस यूटिलाइज कर लेते हैं। तो उनको समझाना कि भाई साहब ये जो चीज़ है आपको लॉन्ग रन में दिक्कत दे सकती है, उनको समझाना, उनको काउंसिल करना और उनकी पूरी की पूरी वर्किंग कैपिटल जो है उनको बना करके देना कि अगर आपने 1 करोड़ की सेल 1 साल में करनी है तो महीने की आपकी कितनी सेल आपको अचीव करनी है, हफ्ते की आपको कितनी सेल अचीव करनी है, और वो सेल कर देने के बाद पैसा भी आपको कितनी देर में वापस रिकवर कर लेना है। और उतनी सेल करने के लिए आपको हमेशा कितने की इन्वेंट्री, कितने का स्टॉक आपको अपने गोदाम में रखना है। तो स्टॉक आ गया, उसका रिसीवेबल मैनेजमेंट आ गया, उसका बैंक मैनेजमेंट आ गया, सारा कुछ आ गया। ये चीज़ हमें उसको, देखिए वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको वो सिर्फ धंधा करना आता है उसको, लेकिन उसकी मार्केट में कितना पैसा फंसा है, उसका इन्वेंट्री में कितना पैसा फंसा है, वो भूल जाता है। एक क्लाइंट मेरे पास आया, कहता जी वो सोलर इक्विपमेंट में डील करता था, कहता सर मैं काम भी ठीक है, प्रॉफिट भी ठीक है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा पैसा कहाँ जा रहा है। वो पैसा सारा का सारा उसका जितना भी वो कमा रहा था सारा का सारा उसके वर्किंग कैपिटल में ब्लॉक हो रखा था। कहता है सर जब भी देखो बैंक खाली होता है, मैं इतना पैसा डाल चुका हूँ, इतना काम भी कर रहा हूँ, सेल भी ठीक हो रही है, प्रॉफिट भी ठीक हो रहा है, लेकिन बैंक में पैसा नहीं है। पैसा कहाँ है? पैसा आपके स्टॉक में पड़ा है या मार्केट में फंसा हुआ है। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की उनको एडवाइजरी करना। प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड फीसिबिलिटी स्टडीज, बैंक्स में जैसे उनकी शुरुआत में पहली प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, फिर हर साल उनका रहता है। कोई नया काम कोई करना शुरू चाहता है या आपका एग्जिस्टिंग क्लाइंट कोई एमएसएमई कोई नई मशीन लगाना चाहता है या कोई नया प्रोडक्ट पैरेलल लॉन्च करना चाहता है, उसकी फीजिबिलिटी स्टडी, ये सब करने में हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। मार्केट रिसर्च रिपोर्ट, हम ही लोग अपने क्लाइंट्स को एडवाइस कर सकते हैं कि भाई साहब आज आप सोलर का काम कर रहे हो, मेरे हिसाब से फूड प्रोसेसिंग में भी काफ़ी अच्छा मार्जिन है, सरकार सपोर्ट कर रही है और पुश कर रही है स्टेट्स को भी, और अपने एरिया में काफ़ी अच्छी इंसेंटिव स्कीम्स हैं और
कैपिटल की इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी आपको सब्सिडीज हैं। तो आप फूड प्रोसेसिंग में क्यों नहीं आते, या उनको मार्केट रिसर्च के लिए फिर आगे उसके बाद मार्केट रिसर्च उनको करके देना कि कौन सा प्रोडक्ट, फूड प्रोसेसिंग एक इतनी बड़ी लाइन है, फूड प्रोसेसिंग में भी कौन सी प्रोडक्ट को करना। कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट मैनेजमेंट। कॉस्ट कंट्रोल इज रियल एंड परमानेंट रिडक्शन, कॉस्ट मैनेजमेंट इज कि मेरी कॉस्ट इतने इसी दायरे में रहे। तो शुरू में तो जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट मैनेजमेंट के ऊपर उनका इतना ज़्यादा ध्यान नहीं होता, या जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग में हमने या वर्किंग कैपिटल में हमने डिस्कस किया था कि 1 करोड़ की सेल करनी है, तो उसका टारगेट सिर्फ सेल के ऊपर ही रहता है। वो सेल वो किस कॉस्ट पे कर रहा है उसके ऊपर उसका ज़्यादा ध्यान नहीं जाता। तो वो चीज़ को ध्यान में रखने के लिए या उसको हमें एडवाइस करना चाहिए। और इसमें जो ये वाला जो पॉइंट है, इसमें क्लाइंट आपको फीस दे के भी बहुत खुश होता है। कॉस्ट कंट्रोल में अगर हम उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट में हेल्प करते हैं रिडक्शन में, या हम उसको एरियाज बताते हैं कि जी आप इस एरिया में आपकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है, इसको मैनेज करो या इस तरीके से मैनेज करो, तो वो आपको पैसे देके बड़ा खुश होता है कि हाँ जी मैं सेफ हाथों में हूँ। तो कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट मैनेजमेंट इज़ वन एरिया। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है, इंडियन प्रोडक्ट जो है, वो क्वालिटी में जैसा भी हो, लेकिन वो चाइनीज़ कॉस्टिंग के साथ, चाइनीज़ प्राइसिंग के साथ इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट नहीं कर सकता। अगर हम अपने एमएसएमई को प्रॉपरली कॉस्ट मैनेजमेंट एंड कॉस्ट कंट्रोल के ऊपर शुरू से ध्यान देने को बोलेंगे या उनको ठीक एडवाइस करेंगे, तो उसका प्रोडक्ट मार्केट कॉम्पिटिटिव भी होएगा, वो कम पैसे में भी बेच पाएगा, ज़्यादा मार्जिन भी कमा पाएगा। क्योंकि कॉस्ट कंट्रोल जो है वो आपने, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही बारी करनी है। आज आपको मैं फिर से रसगुल्ले की एग्जांपल लेता हूँ कि रसगुल्ले के एक टिन को जो मार्केट में मान लीजिए 200 रुपये का अवेलेबल है, बनाने में 50 रुपये लगते हैं, ठीक है ना। ये 50 को अगर हम 40 कर देते हैं तो उसकी तो 20% कॉस्ट कम होगी, एंड अगर हम 20% ऊपर से कम कर देते हैं तो 40 रुपये कम होगी। तो जो चीज वो 200 की बेच रहा था वो 160 की बेच पा रहा है। तो मार्केट कॉम्पिटिटिव देखिए कि आज के डेट में वो 200 रुपए के अगर 1 लाख यूनिट बेच पा रहा है तो 160 रुपए में हो सकता है कि वो 1.5 लाख यूनिट बेच पाए, तो उसका ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ जाएगा। सिर्फ 10 रुपए कॉस्ट कंट्रोल कर देने से उसका वॉल्यूम जो है वो 1.5 गुना हो गया, और प्रॉफिट भी आप देखिए उसका कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो कॉस्ट कंट्रोल का इफेक्ट जो है वो सिर्फ आपकी कॉस्ट के ऊपर नहीं है, आपकी मार्केट के ऊपर भी है। 10 रुपए कॉस्ट कम करने से आपके 40 रुपए एमआरपी कम हो गई और आप कितने ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गए। फाइनेंशियल प्रोसेस डिजाइनिंग एंड डिप्लॉयमेंट। अब ये भी अगर हम वर्ड किसी अपने एमएसएमई को बोलेंगे तो थोड़ा सा वो घबरा जाएगा। इसका मतलब सिंपल यही है कि जी आपके जितने भी फाइनेंशियल प्रोसेसेस है, चाहे वो आपका इनवॉइस प्रोसेसिंग है सेल के टाइम पे, या आपकी पेमेंट प्रोसेसिंग है, या सिंपल आपकी बैंक रिकॉन्सिलेशन है, उसको उस प्रोसेस को वो जिस तरीके से आप करते हैं, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर हम उसको काम करने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर दें तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत ना पड़े और कम खर्चे में हम आपका सेम काम ज़्यादा इफेक्टिवली कर सकें। तो फाइनेंशियल प्रोसेस, आपकी डिसबर्समेंट की कोई है, आपने सैलरी डिसबर्स करनी है, अभी मैनुअल काम कर रहे हैं, गलती से 50 में से 3 लोगों को डबल सैलरी चली गई, ठीक है जी, और आपका जितना आपने थोड़ा बहुत पिछले महीने में बचाना था वो 3 लोगों की सैलरी से निकल गया, और वो स्टाफ तो बोलेगा नहीं कि जब अकाउंटेंट पकड़ेगा तो देखेंगे। उसको इस चीज के ऊपर काउंसिल करना, उसको अग्री कराना
कि वो जितना जल्दी हर चीज को एक डिसिप्लिन प्रोसेस के अंदर ले आएगा, उतनी ही जल्दी वो ग्रो कर पाएगा। डेफिनेटली कि छोटे यूनिट्स में फाइनेंशियल प्रोसेस डिप्लॉय करने का खर्चा ज़्यादा होता है, क्योंकि एक ही आदमी मल्टीपल काम कर रहा होता है, लेकिन ये ग्रोइंग एमएसएमईज के लिए है, जो कि बहुत जल्दी जिनके वॉल्यूम बढ़ रहे हैं या जिनकी मतलब एम्बिशन कुछ ऐसी है या इनिशियल कैपिटल कुछ ऐसा है जो इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ें हैं। स्टाफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट, इसमें भी हम अपने एमएसएमईज भाइयों की हेल्प कर सकते हैं, क्लाइंट्स की हेल्प कर सकते हैं कि आपको थोड़ा सा हमें भी पढ़ना पड़ेगा टेक्निकल, अगर हम स्टाफ सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट्स में भी जाते हैं तो। नहीं तो अभी तो हमें रिक्वायरमेंट यही आती है कि भाई साहब मेरा अकाउंटेंट भाग गया, भाई साहब एक नया अकाउंटेंट और दे दो, भाई साहब इसकी सर्विसेज से खुश नहीं हुई, एक और दे दो। तो ये भी एक बहुत अच्छी एवेन्यू है हमारे लिए, सीएस के लिए, कि अगर हम थोड़ा सा उसके बिजनेस को ध्यान से पढ़ें या उसके बारे में रिसर्च करें, तो उसको हम अदर देन फाइनेंशियल या अकाउंटिंग स्टाफ, हम उनको और भी स्टाफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट में हम उनको हेल्प कर सकते हैं। वो अपने तरीके से, देखिए किसी भी एमएसएमई जब भी कोई नया स्टाफ आता है तो सिर्फ शक्ल देखी जाती है या एक कागज का टुकड़ा जिसके ऊपर लिखा होता है कि इसका क्या रिज्यूम है, लेकिन क्या वो उस के काबिल है भी कि नहीं, ये देख पाना हर किसी एंटरप्रेन्योर के बस की बात नहीं है। तो वहीं पे हमारा काम, वहीं पे हमारा रोल आ जाता है कि हमने ये इंश्योर करना है कि सही बंदा हम उसको सिलेक्ट करके दें, जिससे कि वो भी ग्रो करे और इंडस्ट्री भी ग्रो करे एंड हमारी भी ग्रोथ हो। फिर वैल्यूएशन सर्विसेज, एमएसएमईज को टाइम पे पैसे की ज़रूरत पड़ती है, या जो स्टार्टअप्स हैं उनको भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो जब भी वो इक्विटी पार्टिसिपेशन किसी की चाहते हैं बाहर वाले की, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म है या कंपनी है या प्रोप्राइटरी से पार्टनरशिप में जा रहा है, तो वहाँ पे वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है कि किस वैल्यू के ऊपर नए पार्टनर को डाला जाए या नए इन्वेस्टर को या नए शेयर होल्डर को डाला जाए। तो अगर हम रजिस्टर्ड वैल्यूअर नहीं हैं तो भी हम उसको ठीक तरीके से एडवाइस करके अपने एमएसएमई को हम उसको बेस्ट वैल्यूएशन के ऊपर हम उसको पैसा दिलवा सकते हैं, फंडिंग दिलवा सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा काम है इंडस्ट्री में। हिंदुस्तान में आज की डेट पे बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर्स हैं जो छोटे बिजनेसेस में पैसा लगाते हैं। फिर ए स्टेज फंडिंग वाले लोग हैं, बी स्टेज फंडिंग है, मल्टीपल स्टेजेस जो हैं फंडिंग की आज की डेट में, मतलब ये मार्केट, इन्वेस्टमेंट मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंडिया में डेवलप हो रही है। तो इस मार्केट में या इस इंडस्ट्री में भी हम अपने जो एमएसएमई भाई बहन हैं, क्लाइंट्स हैं, उनकी हम अच्छी तरीके से सर्विसेज हम उनको दे सकते हैं। कैपिटल रेजिंग एंड डिल्यूशन, ये भी वैल्यूएशन का ही पार्ट है कि आपको कितना कैपिटल रेज करना चाहिए, किस फॉर्म में रेज करना चाहिए, इक्विटी में करना चाहिए या प्रेफरेंस शेयर्स में करना चाहिए या कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स में करना चाहिए, प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर क्या रिटर्न आपको देनी चाहिए, क्यूमुलेटिव होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, सबके बेनिफिट सबके नुकसान उसको समझा के जो भी कोई एमएसएमई होता है वो डाइल्यूशन से डरता है कि नहीं जी मेरे राइट्स खत्म हो जाएंगे, लेकिन उसको ये समझाने की ज़रूरत पड़ती है कि भाई साहब आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो मलकियत से नहीं होना चाहिए, उसकी वैल्यूएशन से होना चाहिए। आज आपकी कंपनी 1 करोड़ की सेल कर रही है, मान लो 10 करोड़ की हम उसकी वैल्यूएशन बनाते हैं जो 100% आपकी है। अगर आप बाजार से 1 करोड़ रुपए और उठा लेते हो 10% की डाइल्यूशन करके, 10 करोड़ के ऊपर 10%, 1 करोड़ का पैसा उठा लेते हो और उस 1 करोड़ को यूज करके आप अपनी टर्नओवर 1 करोड़ से 10 करोड़ कर सकते हो। तो आज आपकी वैल्यू है कंपनी की या आपके शेयर्स की वैल्यू है 10 करोड़, कल को 90% ऑफ 100 करोड़ जो है आपकी वैल्यू, तो 90 करोड़ हो गई। तो आज आपको 10% देके आप 1 करोड़ लेके आप अपनी सेल बढ़ा के या अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो, जिससे कि उसकी वैल्यूएशन बढ़ सकती है। तो वो
10 करोड़ से उठ के सीधा 90 करोड़ तक चली जा सकती है। तो ये चीजें समझा के, मतलब मैं तो इसी तरीके से समझाता हूँ कि जी आपको अपनी परसेंटेज ऑफ शेयर्स से नहीं मतलब होना चाहिए, उसकी आज की डेट में बाजार का क्या भाव है उसके ऊपर आपको देखना चाहिए। आज आप 1 करोड़ की सेल कर रहे हो 100% शेयर रख के, और उसकी मार्केट वैल्यूएशन अगर हम 10x लेके चलते हैं टर्नओवर की 10 करोड़, अगर आपको 1 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है पैसे की एक्सपेंशन के लिए, आप 1 करोड़ की सेल को बढ़ा करके 10 करोड़ कर देते हो और फिर भी 10x हम सेम फॉर्मूला यूज करके 100 करोड़ की वैल्यू कर देते हैं। तो जहां पे आपकी वैल्यू 100 थी वहां 90% ऑफ 100 करोड़ आपकी वैल्यू रह जाएगी, 90 करोड़ रह जाएगी। तो इन एनी केस वो एक बहुत ही अच्छी रिटर्न है आपके पैसे के ऊपर। तो कैपिटल रेजिंग में एंड डाइल्यूशन में भी हम अपने क्लाइंट्स की काफ़ी अच्छी सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे क्लाइंट थे यहाँ चंडीगढ़ में ही, इसमें प्रीपेड पीपीआई का लाइसेंस था उनके पास आरबीआई से। सो उन्होंने अपनी बिजनेस में 1 करोड़ 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे टोटल, और उनके बिजनेस को फ्लिपकार्ट ने 25 करोड़ में खरीद लिया था। यहाँ तो चलो हम कैपिटल रेज की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज हैं मार्केट में। तो उसको 25 गुना रिटर्न मिला। अब वो 25 करोड़ रुपए से उसने 2 बिजनेसेस और स्टार्ट कर लिए, अपने सारे बैंक लोन पे ऑफ कर दिए और 2 बिजनेसेस और स्टार्ट कर लिए, एंड देन ही इज राइजिंग। तो उसमें एडवाइजरी रही थी हमारी, तो 100% डाइल्यूशन करके वो एग्जिट कर गया। तो उसको जब सेकेंड टाइम के लिए वो गया, दूसरी बारी जब वो फंड रेजिंग के लिए, तो उनसे सवाल ये पूछा गया कि जी आप बिजनेस बेच दोगे, इस बिजनेस नहीं बेचोगे, इसकी क्या गारंटी है। उन्होंने बोला कि सर मैं तो फंड रेजिंग के लिए गया था, लेकिन उन्होंने मुझे इस टाइप का ऑफर दिया, किस्मत की भी बात होती है, कि जिसको मैं रेजिस्ट नहीं कर पाया। आप बताइए कि अगर 1 करोड़ के बदले में आपको कोई 25 करोड़ ऑफर करे, आपके पास कोई एक सामान है जिसको आपने 1 करोड़ रुपए का बनाया, आपको कोई उसके 25 करोड़ रुपए दे, कोई भी नॉर्मल बंदा कहेगा कि हाँ जी ठीक है जी ले लो। तो उनको फिर आगे नेक्स्ट लेवल पे भी फंडिंग हो गई थी। डेट फंडिंग, प्रोजेक्शंस, सीएमए डाटा, ये डेट फंडिंग चाहे बैंक से है, चाहे एनबीएफसी से है, चाहे और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से है, हम उनको एडवाइस कर सकते हैं कि कहाँ से डेट फंडिंग आपको सस्ती पड़ेगी, आपको कहाँ पे अच्छा मोरेटोरियम मिल सकता है, कैसे सर्विसिंग अच्छी हो सकती है, उनकी प्रोजेक्शंस बनाना, जो भी वो करना चाह रहे हैं उसको ब्लैक एंड वाइट में ला करके, उसकी सब चीज़ें देख करके कि हाँ जी ये फ्रॉम ऑल एंगल्स दीज प्रोजेक्शंस आर ओके। प्रोजेक्शंस उनकी ऑपरेटिंग प्रोजेक्शंस हैं, उनकी फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस हैं, वो सारी इन लाइन है विद द गाइडलाइंस इशूड बाय दैट पर्टिकुलर फंडिंग एजेंसी। उनका फिर एनुअल सीएमए डेटा है, वो फाइल करना, टाइमली फाइल करना रिन्यूअल के टाइम पे। ये सारी सर्विसेज जो हैं जो हम उनको प्रोवाइड आज भी करा रहे हैं, कल भी बहुत इफेक्टिव तरीके से करा सकते हैं। एडवाइजरी ऑन डिपार्टमेंटल कॉरेस्पॉन्डेंस, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि एमएसएमईज को या बिजनेसेस को चिट्ठियां लिखते रहते हैं, या कुछ ना कुछ इंक्वायरी चलती रहती है। तो वो कॉरेस्पॉन्डेंस में हमें क्या लिखना चाहिए, किस तरीके से हमें उसका जवाब देना चाहिए, ये सब चीज़ों के ऊपर भी हम अपने एमएसएमई ब्रदर्स को, क्लाइंट्स को हम बहुत अच्छी एडवाइजरी कर सकते हैं। ये किसी भी डिपार्टमेंट की हो सकती है, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, चाहे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, चाहे बैंक है, चाहे कोई भी है। इवन सप्लायर्स के साथ अगर कोई उनका डिस्प्यूट है, या अपने डेटर्स के साथ कोई डिस्प्यूट है, रिसीवेबल्स के साथ कोई डिस्प्यूट है, तो वो हम उनको कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए हम उनको एडवाइस कर सकते हैं। फिर इंश्योरेंस रिलेटेड सर्विसेज, कोई भी एमएसएमई या कोई भी नया बिजनेसमैन तब तक अपनी इंश्योरेंस नहीं कराता जब तक उसको बैंक वाला नहीं कहता। तो उनको इंश्योरेंस की अहमियत समझाना, उनको बताना, उनके बिजनेस के साथ साथ उस बिजनेस ओनर की खुद की इंश्योरेंस कराना, उसके बिजनेस की इंश्योरेंस कराना, उसकी फैमिली का रिस्क कवर प्रोवाइड कराना, ये भी एक बिजनेस सपोर्ट फंक्शन है जो कि हम लोग एक अच्छे तरीके से कर सकते हैं।
देखिए, जो जिसने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है उसने एकेडमिकली इंश्योरेंस के बारे में पढ़ा होता है, लेकिन उसको पता नहीं होता कि मैं इंश्योरेंस को किस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर लूँ। एक ही पॉलिसी अलग अलग कंपनीज छोटे मोटे राइडर्स के साथ डिफरेंशिएट करके उसको अलग अलग प्राइसिंग पे बेचता है। तो उसको किस राइडर की ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत नहीं है, ये उसको एडवाइस करना, या जिस मतलब जो उसके बेस्ट इंटरेस्ट में है और सस्ती भी है, वो पॉलिसी उसको दिलाना ताकि उसका रिस्क कवरेज रहे। सिर्फ बैंक ने बोल दिया इसलिए इंश्योरेंस कराना, वो एक ठीक तरीका नहीं है। आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन, जो भी आप उनके एग्रीमेंट ड्राफ्ट करें या इवन पार्टनरशिप भी अगर ड्राफ्ट करते हैं तो सब में आर्बिट्रेशन का क्लॉज ज़रूर डालिए। इंस्टीट्यूट की तरफ से भी आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन का कोर्स है, जो उसमें क्वालिफाइड हैं उनके साथ आप बातचीत करके उनको आप आर्बिट्रेटर पार्टनरशिप में तो आप कर ही सकते हैं। एंड अदरवाइज कोई अगर लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट किसी के साथ साइन कर रहे हैं तो उसमें भी आप आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन का आप क्लॉज ज़रूर डालिए। एंड छोटी मोटी जो कोई डिस्प्यूट होते रहते हैं, पार्टनर्स की आपस में हो गई, डायरेक्टर्स की आपस में हो गई, या स्टाफ के साथ कोई सीईओ के साथ किसी की हो गई, या स्टाफ में आपस में होगी, तो वो छोटी मोटी कॉन्सिलेशन के लिए वो आपको भी बुला सकते हैं कि सर ये आपने बंदा रेफ़र किया था, देखो ज़रा समझाओ इसको, बात नहीं मानता, या ये हमारे कहे से काम नहीं करता, या कोई चीज़ें हैं। सो ये इन एडिशन टू द कंप्लायंस फंक्शंस दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, ये बिजनेस सपोर्ट फंक्शंस जो हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस, फॉर एनी स्मॉल बिजनेस, फॉर एनी एमएसएमई। हम ये जो फंक्शंस हैं ये हम देर सवेर वो हमारे से लेता रहता है। इसमें से कुछ जो है वो चार्जेबल हैं, बाकी नॉन चार्जेबल हैं, लेकिन वो बिजनेस में बना रहे, बिजनेस में ग्रो करता रहे, उसका बिजनेस प्रॉफिटेबल चलता रहे, या अगर वो ग्रो कर रहा है उसकी फंडिंग रिक्वायरमेंट है तो वो कैसे बेस्ट तरीके से पूरी कर सकता है, ये सब चीज़ें देर सवेर हम लोग उसको एडवाइस करते रहते हैं। तो और हम उसको मतलब काउंसिल भी करते रहते हैं कि भाई साहब इस तरीके से आप ग्रो कर सकते हो, ये है, ये नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जिस तरीके से हम उसके पूरे पूरे बिजनेस को हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं। सर्टिफिकेशन फंक्शन एमएसएमई के केस में जैसे डायरेक्टर सर ने बताया कि बहुत सारी स्कीम्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की, जो कि एमएसएमईज के लिए, एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए वो इंसेंटिवाइज करते हैं इन मैनी वेज। सो वो सारी स्कीम्स में उनको क्वालिफाई करने के लिए दोनों ही सरकारें, सेंट्रल भी एंड स्टेट भी, सीएस के ऊपर काफ़ी हैविली डिपेंड करती हैं, रिलाई करती हैं ऑन देयर सर्टिफिकेशंस। वो कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर जो कुछ सर्टिफिकेशंस जहाँ पे हम लोग दे सकते हैं उनको, या हम अपना रोल अदा कर सकते हैं पूरे इकोसिस्टम में। एक तो है टर्नओवर सर्टिफिकेट। कुछ इंसेंटिव्स ऐसे हैं जो टर्नओवर लिंक्ड हैं, तो वहाँ पर वो टर्नओवर सर्टिफिकेट जब वो सर ने बताया था, सिंगल वो पॉइंट है ऑनलाइन इन्वेस्ट हरियाणा का, जहाँ पे हम अपनी इनरोलमेंट करके उसके बाद हम बहुत सारे जो इंसेंटिव्स हैं जिनके लिए हम एलिजिबल हैं वो क्लेम कर सकते हैं। सब कुछ ऑनलाइन है, बहुत ही सुंदर पोर्टल बनाया वो। वहाँ पे ये सर्टिफिकेट बाकी सब चीज़ों के साथ अपलोड होता है। तो टर्नओवर सर्टिफिकेट है। फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट सब्सिडी है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो उस स्कीम के हिसाब से फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट का सर्टिफिकेट हमें हम दे सकते हैं, जिसके ऊपर उनको सब्सिडी मिलती है। टेक्नोलॉजी एक्विजिशन, अगर हम अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में कोई नई टेक्नोलॉजी एक्वायर करते हैं
या नए बिजनेस में कोई नई टेक्नोलॉजी एक्वायर करते हैं, तो उस टेक्नोलॉजी एक्विजिशन का जो खर्चा है, उस खर्चे के ऊपर भी स्टेट गवर्नमेंट का एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जो कि हमें उसके ऊपर रिबेट प्रोवाइड या सब्सिडी प्रोवाइड करती हैं। 10% से लेकर के 40% तक है, डिपेंडिंग अपॉन हम किस एरिया में हैं, किस इंडस्ट्री में हैं। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एनर्जी, वाटर, सेफ्टी ऑडिट, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो एनर्जी, वाटर, सेफ्टी ऑडिट कराती हैं। जो सर्विस सेक्टर है वो एनर्जी ऑडिट कराते हैं कि जी मैं कितनी बिजली बचा रहा हूँ या कैसे है। तो उस एनर्जी कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन या सेफ्टी इक्विपमेंट या स्टाफ के ऊपर, तो उसके खर्चे के ऊपर जो ऑडिट का जो खर्चा है, वो खर्चे की भी रीइंबर्समेंट है स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम में, जो कि आपको अवेलेबल है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एक्विजिशन ऑफ पेटेंट रजिस्ट्रेशन, जितने भी नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग में हैं या ITES में हैं या जो भी हैं या मैन्युफैक्चरिंग में हैं, वो नए पेटेंट अपने अप्लाई करते हैं। फिर पेटेंट एप्लीकेशन के बाद उसका एक लंबा प्रोसेस है, 3 से 4 साल का एक प्रोसेस है पूरा पेटेंट एक्वायर करने के लिए, जिसमें काफ़ी खर्चा होता है और वो खर्चा जो है वो लाखों में चला जाता है। तो उस खर्चे में डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस टाइप का पेटेंट है, कैसे है उसमें, और वो किस एरिया में वो यूनिट लगा है ABC, तो वो खर्चे की रीइंबर्समेंट है सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिट्स। FOB वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड, एक्सपोर्ट सब्सिडीज भी हैं, तो उसमें FOB वैल्यू हम लोग सर्टिफाई करते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की भी स्कीम्स हैं, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की ही अलग अलग स्कीम्स हैं कि इतने नंबर से अलग। हरियाणा गवर्नमेंट की तो स्कीम ये कहती है कि इतने परसेंटेज से ज़्यादा अगर आप, और इतने लोगों से ज़्यादा अगर आप हरियाणा में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, तो पर एम्प्लॉई हम आपको इतने रुपए इतने सालों तक हम आपको इंसेंटिवाइज करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहती है कि अगर आप इतनी देर में इतनी सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर देते हैं तो हम आपको इतना देंगे। मैंने एक जनरल चेकलिस्ट बनाई थी जो इंसेंटिव्स हैं, जैसे डिप्टी डायरेक्टर सर बोल रहे थे, तो मैंने उसकी एक जनरल चेकलिस्ट बनाई है। मैं वो एक बारी ये मैं प्रेजेंटेशन के साथ आपको शेयर कर दूंगा। ये 12 पेज की एक चेकलिस्ट है। पूरी प्रेजेंटेशन में हम इंडिविजुअली तो स्कीम्स नहीं डिस्कस कर पाएंगे। जैसे ये मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस है, ये स्कीम का क्या नाम है, उसकी इंस्ट्रक्शंस क्या है, मतलब उसकी कंडीशंस क्या हैं, उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसका प्रोसीजर क्या है और टाइमलाइन क्या है। इसी तरीके से है ये टेस्टिंग इक्विपमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम, ये सब स्टेट गवर्नमेंट की हैं। क्रेडिट रेटिंग स्कीम्स, एनर्जी ऑडिट, असिस्टेंस ऑन फॉर एनवायरमेंटल कंप्लायंस, डिजाइन क्लिनिक स्कीम, क्रेडिट लिंक इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, ये एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है, बहुत अच्छी इसमें अपने को इंटरेस्ट सब्सिडी मिल जाती है, इंटरेस्ट कॉस्ट काफ़ी कम हो जाता है। सेफ्टी ऑडिट, वाटर ऑडिट, क्वालिटी सर्टिफिकेशन असिस्टेंस स्कीम, ISO जो हम लेते हैं उसमें ISO एप्लीकेशन सर्टिफिकेशन, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ISO हैसअप BSI WHO GMP ZTS हॉलमार्क, इन सब के लिए जो हम सर्टिफिकेशन अप्लाई करते हैं, उन सब के लिए जो खर्चा होता है, उन सब के लिए हमें असिस्टेंस मिलती है, खर्चे में बेनिफिट हमें वो देते हैं, चाहे थोड़ा बहुत है। इसका इस स्कीम का पर्पस ये है कि जो भी, क्योंकि MSME है, ये कुछ सालों पहले तक अनऑर्गेनाइज्ड होता था, इनको सब हम
ऑर्गेनाइज्ड वे में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और स्टैंडर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को ऊपर उठाने के लिए ये बेनिफिट दिए जा रहे हैं कि वो अपने ISO सर्टिफिकेशन लें, हैसअप लें। हैसअप फूड इंडस्ट्री में होता है, BSI, WHO, GMP, ZTS, हॉलमार्क, ये सब स्टैंडर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को अपग्रेड करने के लिए है। स्टैम्प ड्यूटी रिफंड, ये भी स्टेट गवर्नमेंट का है। फ्रेट असिस्टेंस, सेटिंग अप प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स, कलेक्शन सेंटर्स, बहुत स्कीम्स हैं। इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, एक स्टेट गवर्नमेंट की थी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, असिस्टेंस इन टेक्नोलॉजी एक्विजिशन, इन्वेस्टमेंट सब्सिडी ऑन VAT, SGST, स्टेट गवर्नमेंट की है ये। पेटेंट रजिस्ट्रेशन, मार्केटिंग प्रमोशन असिस्टेंस स्कीम, interest subsidy scheme for artisans, e-commerce linkage for MSME। ई-कमर्स लिंकेजेस जो हैं ये बेसिकली क्या है कि आपने पर्पस ये है कि जो हम अभी लोकल अपना सामान बेच रहे हैं उसके लिए मार्केट को बढ़ाना, तो इसके लिए ई-कमर्स के साथ MSMEs को जोड़ना। इसके लिए भी मतलब आप देखिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, ये सरकार ने ही बनाए हुए हैं सारे। जो स्टार्टअप इंडिया है या ऐसे गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उन्होंने अपने मार्केट प्लेसेस बनाए हुए हैं, वहाँ पे आप उद्यम रजिस्ट्रेशन लेकर के आप वहाँ पे अपनी KYC पूरी करा के आप अपने प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। तो जिसको भी ऐसे सामान की ज़रूरत है तो वो डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट कर सकता है। ऐसे काफ़ी स्टेट्स अपना भी चला रही हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना भी चला रही है। सो ये एक चेकलिस्ट है विच आई विल शेयर विद माय प्रेजेंटेशन। मेरी तरफ से यही था। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो इसी स्लाइड का है, क्योंकि बाकी स्कीम्स तो या सर्टिफिकेशंस तो आती जाती रहती हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है रोल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन MSME वो इसी स्लाइड में ही है। दैट CAs plays a vital role in entrepreneurship development and a business ecosystem that is conducive to its emergence, easy finance, expertise, infrastructure, skills, and a high level of motivation for change। ये अगर हम अपने गांठ बिठा लें तो हमारे जितने भी MSME भाई हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो किसी भी स्टेज पे मतलब उनकी ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता अगर हम उनको जेन्युइनली उनको सपोर्ट करें इस स्टेटमेंट को माइंड में रख के। और वो तो ग्रो करेंगे ही करेंगे, इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी, एम्प्लॉयमेंट भी ग्रो करेगी, पूरा डिस्ट्रिक्ट ग्रो करेगा, पूरा स्टेट ग्रो करेगा, पूरा रीजन ग्रो करेगा, पूरा देश ग्रो करेगा, हम भी ग्रो करेंगे उसके साथ। सो ये मतलब मेरे हिसाब से पूरी प्रेजेंटेशन में या पूरे MSME इकोसिस्टम में जो रोल ऑफ CAs है, मेरे ख्याल से दीज आर द फ्यू लाइंस जिसमें वो एक बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन मैंने करने की कोशिश करी है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। हम थैंक यू पंकज जी, डिस्कस कर सकते हैं। किसी मेंबर की कोई क्वेरी हो तो वो क्वेश्चन आंसर में टाइप कर सकता है। गुरु प्रताप जी अगर हैं तो गुरु प्रताप जी के लिए क्वेरी है। ये एक मैसेज आया था भरत जैन जी का, कुछ सब्सिडी स्कीम्स ही बता दें तो वो मैंने आपको एक चेकलिस्ट जो है वो उसके अंदर लिखी हुई है सारी, वो चेकलिस्ट सर मैं से शेयर कर दें अगर। हाँ जी, मैं आपको प्रेजेंटेशन और ये चेकलिस्ट दोनों शेयर करूंगा जी। सर एक ही क्वेरी है क्वेश्चन आंसर में, एक बार आप देख लीजिए। लाइक टू कमेंट सर।
ये राजेश मेहरा जी के है, गुरप्रताप सर के लिए। सर congratulations to International MSME. Would you like to comment upon modus operandi of schemes mentioned in Haryana Enterprise Policy 2020? When form and procedures are likely to be released? अभी जो है स्कीम्स, मैक्सिमम स्कीम्स अभी पता चला है कि वो देरी इस कारण हुई है कि पेंडेमिक के कारण नोटिफाई नहीं हुई थी स्कीम। अब स्कीम नोटिफाई हो गई है मैक्सिमम, और जल्द ही वो एक्टिवली उसमें इंसेंटिव स्कीम अप्लाई होने लग जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, नाउ आई इनवाइट अदीश जी, पास्ट चेयरमैन हिसार ब्रांच, फॉर फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स। अदीश जी सर। Thank you, Bharaji. Am I audible? Yes, sir. Thank you. A very special thanks to Chairman Shri Bharat Jain ji for organizing such a wonderful event. And secondly, I would like to congratulate all the members, all the panelists for MSME Day, which we are celebrating in the form of a seminar and webinar. And now I present my sincere thanks to our special invitee of the day, Shri Ajay Batra ji, Secretary Hisar Udyog Sangh, Shri Ashwini Singhal ji, Director Ganesh Road Lines, who spare their valuable time for this event, for this webinar. I would like to present thanks to Upinder Kumar ji, AGM PNB Hisar. As a guest of honor, he present in the webinar. Or I also put my sincere thanks on behalf of Hisar branch of NIRC of ICI to Shri Gurpreet Singh ji, Deputy Director, State MSME Hisar, who join us as a chief guest for this webinar. Very thank to all the dignitaries, but last not the least, the speaker of the day, CA Pankaj Gupta ji, who join us from Panchkula and deliberate his valuable information and knowledge for the benefit and upliftment of our members and the members of industry also. I hope all of us, all the participants, panelists must have shared something, must have gained something, must have uplift their knowledge. And I hope after this session, many members, including me also, we will try to share and to enlarge our knowledge in this MSME sector. Generally, बहुत कम लोग इस फील्ड में इंगेज रहते हैं. आई होप कि एक एवेन्यू, एक फील्ड हम लोगों के लिए, आप लोगों के नॉलेज की वजह से शायद हमें मिलेगी. और मैं आशा करता हूं कि सभी मेंबर्स और हमारे कम्युनिटी के अंदर भी इसकी अवेयरनेस बढ़ेगी. और हम सब लोग आपको अश्योर करते हैं, जो रजिस्ट्रेशन की भी बात बीच में टॉपिक में आई थी, गुरप्रताप सिंह जी ने भी बोला कि हमें रजिस्ट्रेशन करनी है, कुछ दिनों में मैंडेटरी भी हो जाएगी. वी अश्योर सर, आपने एक मैसेज किया था कि हिसार सेकंड नंबर पे है, जल्दी फर्स्ट पे आ जाएगा. और हम सब लोग बहुत उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस हो, मेंबर्स को अवेयरनेस हो. एमएसएमई की जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, टाइम टू टाइम हम लोग आपसे शेयर करते रहेंगे और मेंबर्स को अवेयर करते रहेंगे. इस इवेंट के लिए पूरी हिसार ब्रांच की कमेटी को, आप सब लोगों का, हमारी स्पेशल इन्वाइटीज का, स्पीकर पंकज गुप्ता जी का, बाकी सभी डिग्निटरीज का पुनः मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सबने अपने वैल्यूएबल टाइम में से टाइम निकाल करके हिसार ब्रांच के मेंबर्स को एनलाइट करने के लिए हमें समय दिया. बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद सर. थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू पंकज जी, थैंक यू अजय जी, थैंक यू गुरप्रताप जी, उपेंद्र जी, अश्वनी जी, थैंक यू.